Yesterday we had an amazing session with Pavan Kumar Srivastava sir, and today we are here with the day 3 of our webinar. Those who have joined us today, I would like to tell them that Samarth Theatre Group is a Delhi-based drama school. Here at Samarth, we believe in holistic development of actors is must. Hence, the training should be multidimensional, and therefore we are here with the season 1 of our webinar, having eminent personalities who will talk on diverse topics. We organize many events throughout the year, like workshops for different tactic techniques, seminars, talks, special workshops, etc. To get those updates, do follow us on our Instagram handle and like our Facebook page. You can see the chat box for the links. So, today I, Ankit Kumar, on behalf of Summer Theatre Group, welcome you all in the first season of our webinar. Moving on, I would like to introduce our speaker of the day, अशोक लाल सर। अशोक लाल जी ने बचपन से ही शायरी शुरू कर दी थी और नाटक लिखना 1975 में। इन्होंने 80 के दशक में टीवी और फिल्मों में लेखन शुरू किया। इनका बहुमंचित और सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक एक मामूली आदमी आज भी देश के कई थिएटर में खेले जाते देखा जा सकता है। इन्हें शत्रु नाटक के लिए नटरंग प्रतिष्ठान के नेमीचंद जैन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और नाटक रवि और रवि के लिए दिल्ली साहित्य कला परिषद से पुरस्कृत भी किया गया। अशोक लाल जी ने आज तक ढेरों नाटक लिखे हैं। राजा नाहर सिंह, आठवां फेरा, सर जी, दो दूनी चार, ओ माय गॉड, उर्दू नाटक बुद्ध की राह में गालिब से मुलाकात और तारामती वगैरह मौलिक नाटकों में से। चर्चा गली गली, देखा अनदेखा, जंतु परंतु, खूबसूरत, माँ रिटायर होती है और 2.5 कमरे का मकान अनुदित नाटकों में से है। इसके अलावा इन्होंने कुछ नुक्कड़ नाटक भी लिखे हैं जिनके देश भर में हजारों प्रदर्शन भी हुए। अशोक लाल जी ने कई नाटकों का सफल प्रशंसित निर्देशन भी किया। साथ कुछ नाटकों में जाने माने निर्देशकों के साथ अभिनय भी किया, जैसे अंधायुक, 10 गंधर्व, एतार पे गालिब, दारा शिको और बुद्ध की राह में गालिब से मुलाकात भी शामिल है। फिल्मों में तेरा नाम मेरा नाम, अपना सपना, निमंत्रण, पितृदेव भव प्रमुख हैं। साथ ही टीवी के लिए बनफूल, समय, अनुपमा वगैरह के लिए लेखन भी किया है। सर ने 13वीं सदी के महान चीनी नाटककार कुआन हान चेन के नाटकों पर आधारित रेडियो सीरीज चीनी चाशनी आकाशवाणी के लिए ही लेखन किया है। इसके अलावा इन्होंने वॉइस ओवर भी की। अशोक लाल जी शायर और गीतकार हैं। इन्होंने अपने नाटकों और टीवी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। अतीत शायरी और मजमुआ रोशनाई जल्द ही शाया होगा। इन्होंने कई मुशायरों और नशिस्तों में हिस्सा भी लिया और शिकागो से लेकर दिल्ली के जश्न रेखता में एकल प्रोग्राम भी किए हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अशोक लाल जी को तालियों के बीच डिजिटल स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। वी वेलकम यू सर। Thank you so much, Ankit. Thank you very much. So, before sir start with his talk, I would like you to follow some instructions. First, please keep your mic muted during the presentation. I would like you to keep your cameras on so that we can have a good interactive session. You can ask your questions by typing it in the chat box, but try to avoid during the presentation, as we'll have a Q&A session at the end as well. As we are in great numbers, so in order to avoid chaos, those questions will be consolidated and asked by me. But at the end, if you feel that your questions haven't been answered or asked by me, then you have an option of raising hand in the application. So do click it. Last, but the most important one, we all are connected through a digital medium whose controls are beyond us. I hope you'll understand. So in case of any technical or network error, do keep a check on your WhatsApp group. If there will be any need, we'll drop the link there. Now, I would request our speaker, Mr. Ashok Lalji, to take the digital stage. Thank you. I guess I don't have to mute myself क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शंस जनरल थे और नॉर्मली मैं काफ़ी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता हूँ. एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू, बट एनीवे अब देखिए, राइटर बनना है, राइटर बनने की कोशिश करना, मुझे पता नहीं लोग क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत थैंकलेस जॉब है. और एक दफ़ा मेरा बड़ा मशहूर नाटक था देखा अनदेखा, 70s में मैंने किया था, उसका जिक्र मैं बाद में भी करूँगा. तो मुझसे वो काफ़ी जाना गया. उसके बाद मुझे एक साहब मिले, तो मैंने कहा कि हाँ मैंने लिखा था और डायरेक्ट किया था. उन्होंने कहा अच्छा आपने सिर्फ लिखा और डायरेक्ट किया था, मतलब जैसे नाटक
एक्टर की बात होती है, लेखक इज इंसिडेंटल, डायरेक्टर इज इंसिडेंटल, इस किस्म का जमाना था। बट आई मस्ट से दैट हैज चेंज्ड अ लॉट। लेकिन लेखक का लॉट मेरी राय में बहुत नहीं बदला है, क्योंकि आज तक जैसे NSD भारंगम करते थे, वो हमारे यहाँ के प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, उसमें जब वो अपने नाटकों को एडवर्टाइज करते थे उस भारंगम में, तो उसमें नाटक का नाम होता था और निर्देशक का नाम होता था, जबकि दुनिया भर में हर जगह राइटर का नाम किसी भी एक्टर या किसी भी डायरेक्टर से ज़्यादा बड़ा होता है। अब आप सोच नहीं सकते, अगर आप शेक्सपियर का नाटक करेंगे तब तो आप ज़रूर शेक्सपियर का नाम लेंगे, तो इसका मतलब हमारा शेक्सपियर होने का कोई ख़ास चांस है नहीं, क्योंकि कोई हमें इतनी लिफ्ट नहीं देने वाला। लेकिन ये भी सच है कि जितनी एक्सटेसी राइटर के दिल में होती है अपना कंप्लीशन, ये सेंस ऑफ कंप्लीशन से, उतना मुझे नहीं लगता कि किसी और को हो सकती है। और उसकी एक वजह ये भी है कि एक्टर को एक दफ़ा करना पड़ता है वो परफॉर्मेंस खत्म, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव व्हाट यू हैव नॉट डन वेल और डन वेल। एक दफ़े एक जो बड़े मशहूर बहुत अच्छे ह्यूमरिस्ट हैं PG वुडहाउस, उनसे किसी ने पूछा कि हाउ डू यू राइट सो वेल, तो उनका जवाब, वो बड़ा पिथी जवाब दिया करते थे, उन्होंने कहा आई री राइट। तो ये जो री राइट वाला सिलसिला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सिलसिला है कि जिस दिन आप सेटिस्फाई हो गए कि ठीक लिखा गया है, वो तो एक अल्टीमेट हेवन का दिन है। अदरवाइज जब भी आप देखेंगे, उसके बारे में और भी बात करेंगे, ये कि मैं उससे कतराऊं नहीं कि बस हो गया यार, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गया तो नाटक में वो इम्पैक्ट नहीं आ सकता जो कि आपको अपने आप को पूरी तरह से जलाने से आएगा। अब एक्चुअली लेखक की दुनिया जो है वो इट्स अ वेरी लोनली वर्ल्ड। आप और आपका ब्लैंक कागज या ब्लैंक स्क्रीन, एंड पहला सेंटेंस क्या होगा, क्या हो रहा है, ये एक मेरा ख्याल एक बड़ी मतलब बहुत डरावना सा एटमॉस्फेयर होता है, और इससे अपनी लोनलीनेस का एहसास होता है। अब जो मेरी अंदरूनी दुनिया है वो दो दुनियाओं से बनी हुई है। एक तो मेरी अपनी वैल्यूज़, मेरे जो ब्रेन वॉश्ड है कई चीज़ों के बारे में, और मेरे कॉम्प्लेक्सेस कि मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और मैं ये हूँ और वो हूँ, गिल्ट कॉम्प्लेक्सेस है ना जाने कितने, और एक मेरा अपनी दुनिया है जो कि कतई लोनली है, और दूसरी दुनिया है दर्शक या पाठक की। अब जो दर्शक और पाठक की दुनियाएं हैं, दुनिया तो नहीं है, लेकिन मैं अपने कंफर्ट लेवल के लिए उसको एक जनरलाइजेशन के से शुरू करता हूँ, ताकि मैं दोनों के बीच में अपनी राइटिंग के थ्रू एक ब्रिज बना सकूं। अब इसमें एक बड़ी चक्कर आता है कि आप जब हीरो का लिखेंगे और अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, तब तो आप अपने आप को उसमें इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर आप विलन के बारे में लिख रहे हैं, एक रेपिस्ट के बारे में लिख रहे हैं और इस तरह के बारे में, तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि आपको भी रेपिस्ट के बारे में मालूम है, आपने भी ज़रूर ऐसा फील किया होगा, आपको भी फ्रॉड के बारे में मालूम है। और इसलिए फ्रैंकली अपने आप को लिखने में, अपने आप को रिवील करने में जो एक कॉम्प्लेक्स होता है मुझे, मैं अभी तक है कि मैं अगर ये लिखूंगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने ये सोचा है। तो ये एक अपने आप से आज़ादी का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो अगर एक वजह जिससे आपको लिखना चाहिए वो है आज़ादी, कि जब आप दूसरों को लेके चलेंगे और अपने आप को रिवील करेंगे उनकी दुनिया में, अपनी दुनिया में तो आप उसमें घुटते रहते हैं, वो एक अलग बात है। सो दैट इज अ वेरी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट थिंग। दूसरों की दुनिया, इन एनी केस मैं अपनी दुनिया के बिना नहीं देख पाता। अक्सर मेरा एक शेर है कि
दुनिया के हर रूप में यारो मेरा असर भी शामिल है, मैं जो देख रहा हूँ उसमें मेरी नज़र भी शामिल है। जब ये जो इंटरप्ले बाहर की दुनिया और मेरी दुनिया से मैं थोड़ा सा डिस्टेंट होके देख पाऊंगा कि ये जो इंटरप्ले हो रहा है वो मेरी आज़ादी का एक पहला लक्षण होगा। अच्छा देखिए, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि इधर उधर की बातें सोचते हुए मैं जाने क्या कहता, ये वाली बात आपको एज अ राइटर जरूर सोचनी पड़ेगी कि मैं बड़ा सोच रहा हूँ, अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता अनलेस यू स्टार्ट राइटिंग, राइटिंग डज नॉट बिगिन। तो मैंने भी अपने आप को, जो मैं भाषण दूसरों को देता हूँ, जो मैं दूसरों को सीख देता हूँ, अपने ऊपर अप्लाई किया और कुछ नोट्स बनाए हैं ताकि मैं बहुत ज़्यादा बकवास ना करूँ, जहाँ तक हो लिमिटेड अपने सब्जेक्ट पर ही रहूँ। तो मैंने मतलब जो अभी तक बात कवर की है कि हम बाहर वाली दुनिया को अपनी लिमिटेशंस के साथ देखते हैं, अपने कॉम्प्लेक्सेस के संग देखते हैं, लिहाजा ये समझना कि मैं कोई सच कह रहा हूँ या अल्टीमेट सच कह रहा हूँ, इस वाले जो अहंकार है, इस बारे की जो मुगालता है, उससे थोड़ा सा वन शुड बी अवे फ्रॉम कि मैं आई नो द ट्रूथ एज इट वर, वो थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। क्योंकि जो डाउट्स की हम गलियों में घूमेंगे और क्यूरियोसिटी की उसमें गलियों में घूमेंगे, नाटक तभी पैदा होगा। कैसे शुरू होगा? अगर मैं, पहला काम है मेरा ऑब्जर्वेशन जो है वो किस तरह से, अच्छा ये मेरा सब्जेक्ट है व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट, राइट? तो ये आपस में काफ़ी मुलाजला होना पड़ेगा, क्योंकि वॉट और हाउ में इसमें काफ़ी हद तक बड़ा इंट्रिकेट संबंध है, जिसको डिवाइड करना कि ये वॉट का हिस्सा है, ये हाउ का हिस्सा है, ये वाई का हिस्सा है, ये थोड़ा तो ये मुश्किल होगा। अंकित, आई एम गेटिंग a feedback of my own voice. So we are just looking into it. Hello, technical, please check it कि किसी का और का माइक नहीं है, वो वहाँ से resolve हो गया। सर कंटिन्यू करते हैं। Sir, you can carry on. This is all. Can I go on? Yeah, sure, sir. Okay. अब मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी अपनी आवाज सुनना। खैर, तो उसमें जब आप कोई चीज देखते हैं, मतलब तो कई दफे आपको, जैसे मैं सुबह बैठ के अपनी बालकनी में चाय पीता हूँ तो सामने बड़ा आइडियलिक सीन होता है, हरा पेड़, कई दफे बूंदें बरस रही होती हैं, चिड़ियाएं चहचहा रही होती हैं, एक आध मोर भी है हमारे यहाँ तो वो भी घूम रहा होता है, वाह बहुत। लेकिन उसको आप जरा सा नजदीक से देखना शुरू कीजिए कि किस कदर चीजें हो रही है उसी पेड़ की डाली पे। छोटी चिड़िया किस तरह से अपने आप को बड़े कौओं से, अपने नेस्ट को बचा रही है, कैसे ही उस दाने के लिए कितने लोग झपटने वाले हैं, कितना कंपटीशन है, किस कदर चीजें हो रही हैं आपके उसी एक पेड़ में, जिसको आप समझ रहे थे कि बड़ा आइडियलिक है, बहुत पीसफुल और क्वाइट है। The moment you start interacting with it, then it kind of changes. Similarly, आपके जो बिल्कुल नॉर्मल आपके इंटरेक्शंस होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसमें जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है या इसके बाद क्या होगा, अगर आप जरा सी भी अटकन लगाएं तो बिल्कुल बात बदल जाती है। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद आ रहा है, जो कि विच शुड हैव पास्ड एज अ डेली हैपनिंग एनीवेयर। मैंने 72 में एक कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन किया था, तो उसमें जो डायरेक्टर थे हमारे, मेरे डायरेक्टर, उनसे मुझे रोज़ाना सुबह मिलना पड़ता था, वो किसी ना किसी वजह से, वो अलग बात है। तो हम लोग एक ही लिफ्ट पे मिलते थे सुबह, जिस पे हम संग जाते थे। तो मैं, भैया मैनेजमेंट ट्रेनिंग अभी भी नौकरी वगैरह लगी थी, तो बड़े जोश से गुड मॉर्निंग सर करा करता था, और वो जवाब दिया करते थे। अब ये वाली बात मुझे खटकती थी कि अब ना आई वांटेड टू गेट इट आउट ऑफ मी, आई वांटेड टू गेट
यू नो लाइक इससे मुझे निजात मिलेगी, नहीं तो मैं रोजाना मुझे सहना पड़ेगा। तो एक दिन जब हम जा रहे थे लिफ्ट में, तो मैंने सुबह उनको ऐसे ही किया, तो ही डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, बट थोड़ा सा गुड मॉर्निंग निकल गया उनका, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आज आपकी चेयरफुल वो नहीं सुनाई पड़ी गुड मॉर्निंग। मैंने कहा साहब मुझे तो कभी नहीं सुनाई पड़ती। इस इंटरेक्शन के बाद मैंने एक नज्म कही, और वो नज्म अपने आप में एक प्ले है, क्योंकि मतलब इट्स अ फ्यू लाइंस, but I had to get out of my system and I had to formulate a general attitude to this happening so that I don't start feeling deprived or मतलब कुछ मुझे एहसास कमतरी ना होता रहे, इसलिए मेरे लिए इवन होना ज़रूरी था। तो मैंने नज्म कही। इस नज्म का नाम है रस्म, नॉट रसम एज इन साबर रसम, बट रस्म एज इन रिचुअल। और ये बहुत ज़रूरी है शायद सब थिएटर वालों को, सब कम्युनिकेशन वालों के हियरिंग को समझने के लिए भी। तो नज़्म मेरी छोटी सी है कि हाल पूछकर मेरा इंतज़ार तो करते मेरा हाल सुनने का, हाल पूछकर मेरा इंतज़ार तो करते मेरा हाल सुनने का, हाल पूछकर यूं तो आप छेड़ सकते थे जैसे घर ततैयों का, फिर भी ऐन मुमकिन है आपसे न कह पाता नागवार सच बातें, और रस्म दोहराता मुस्कुरा के ये कहता आपकी इनायत है। फिर भी सोचता हूँ मैं हाल पूछकर मेरा इंतज़ार तो करते मेरा हाल सुनने का। अब वो जो फीलिंग है वो मेरे लिए हमेशा से ख़त्म हो गई कि अब मुझे, और एक एहसास और भी आया कि मैं ऐसा जवाब नहीं दे सकता। तो ये जो एक छोटा सा इंटरेक्शन था विच शुड हैव पास्ड एज अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ रिएक्शन, ज़रा सा थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो इससे एक अपनी अलग किस्म की सिचुएशन बनी, एक अलग किस्म का फ़लसफ़ा बना, और एक छोटी सी नज़्म जो कि काफ़ी ड्रामेटिक है वो बनी। तो इस तरह से इट इज़ इंटरेस्टिंग कि आप कभी घूमने जा रहे हो या आपके सामने कोई आए या कोई भी स्ट्रेंजर हो या हो जाने वाला, कोई सवाल पूछा, क्योंकि बातचीत कुछ कहीं से तो शुरू होगी, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो कि आज ये बातचीत ऐसे क्यों शुरू हुई, या ये जो कह रहा है ये ऐसा क्यों कह रहा है या कह रही है। तो उसके पहले और उसके बाद की कहानी अगर आप अपने मन में करें तो हर सिचुएशन ड्रामेटिक लगने लगेगी, हर आदमी आपको अपनी कहानी का किरदार लगने लगेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता, हम जिसको भीड़ कहते हैं, एक हर इंडिविजुअल की एक कहानी है, और मेरा और आपका काम ये है कि क्या मैं कम से कम एक कहानी तो ढूंढ सकूं उसके बीच में, और मैं वो कब ढूंढ पाऊंगा जब मेरा उससे आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होगा। उसको लिख कब पाऊंगा जब मैं एक पुल बनाना चाहूंगा बिटवीन दैट स्ट्रेंजर एंड माई सेल्फ, और नॉन जजमेंटली ऑब्जर्व करना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा बुरा गलत सही ये नहीं होना चाहिए था वगैरह अगर आप करेंगे तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है सिचुएशन की, उसको आप शायद कम समझ पाएंगे। तो अब ये ऐसी बातें और काफ़ी होती रहेंगी बीच में, इसलिए मैं इसको फ़िलहाल छोड़ के आई विल कम टू माय नेक्स्ट के शुरू कैसे करें। तो लिखने की शुरुआत जो है उसका सिर्फ एक तरीका है, लिखना। ये जो नखरा है कि मैं सोच रहा हूँ और मैं कल से लिखूंगा और शाम को लिखूंगा वगैरह वगैरह, ये कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको कभी ना कभी वो ब्लैंक पेपर फेस करना होगा, और द प्लेजर ऑफ फिलिंग अप द फर्स्ट पेज, उसको आप 20 दफ़े इम्प्रूव कीजिए, वो अलग बात है, लेकिन वो जो आपके कैथारसिस है वो बहुत ज़रूरी है। मेरा और जब आप कहते हैं आप सोच रहे हैं, भैया मेरे संग तो होता है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल कैन एक्चुअली थिंक मेथोडिकली, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, ऐसा
कितने लोगों के जहन में इस किस्म की थिंकिंग आती है मुझे नहीं मालूम, मेरे नहीं आती। तो मैंने एक शेर फिर कहा था कि मोमल, मोमल माने मीनिंगलेस, मोमल से जाने कितने ख्यालों में घिरा हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। यानी ये कि जब मैं अपने आप से नखरा कर रहा होता हूँ कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो एक्चुअली आप थोड़ा सा नखरा कर रहे हैं। तो ऐसा है कि मूड नहीं है, मैं सोच रहा हूँ, इस तरह के नखरे छोड़िए और सही गलत उल जलूल अच्छा बुरा सबकी परवाह छोड़ दीजिए। इसको कौन डायरेक्ट करेगा, इसमें कौन एक्ट करेगा, अभी सोचना बिल्कुल मना है अगर आपको अपना नाटक अपने तरीके से लिखना है तो। अब इसके जो इनिशियल स्टेप्स हैं नाटक लिखने के लिए, उसमें जैसा कि मैंने कहा, इंटरेक्शंस विद योर इनर सेल्फ विज़-अ-वी योर इंटरेक्शंस विद अदर्स। जब आपने देखा और उनकी एक कहानी बना लिया आपने, एक आदमी जिसको आपने देखा भी नहीं था आज से पहले, जो कि एक जॉब करने आता है, कि कार साफ करने आता है या सब्जी बेचने आता है, उसको वो आज लॉकडाउन के ज़माने में उस किस आदमी को सब्जी क्यों बेचनी पड़ी। अब जैसे मैं एक सिचुएशन लेना चाहूँ, जस्ट अ थॉट ये है मेरे दिमाग में कि अभी अभी एक लड़का और लड़की दोनों में मोहब्बत का इजहार होना शुरू हुआ है कि लॉकडाउन हो गया और अलग अलग मोहल्ले में रहते हैं। अब व्हाट विल द बॉय और द गर्ल डू टू चेंज इट। तो अब आपको ये ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक डिफ़िकल्टी पैदा करें, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें, एक किसी चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश पैदा करें। तो ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप। तो जैसे मैंने कहा ना, सब्जी वाला जो है वो क्या, सब्जी वाला घर पे आज उसके क्या हो रहा होगा, इस तरह की बातों को सोचना शुरू करूँ तो मेरी जो दुनिया है अपने आप में एक तो रिच होती रहेगी और दूसरे मुझे कैरेक्टर्स मिलते रहेंगे। मुझे कहीं पर कैरेक्टर ढूंढने जाने की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो सारे कैरेक्टर्स are within me also. That is a very important thing to understand. अब मेरा ख्याल है नेक्स्ट स्टेप वन इज ऑब्जर्वेशन ऑफ कोर्स। छोटे नाटक लीजिए जो आपको पसंद आ रहे हैं, छोटे नाटक लीजिए, उनको आप ट्रांसलेट कीजिए, उनको आप इस तरह से कीजिए कि अच्छा ये जो कैरेक्टर है ये अगर किसी अलग सिचुएशन में चला जाता या आज यहाँ पे आ जाता मेरे पास या यहाँ पे मिल जाता मुझे, तो किस किस्म की बातें पैदा होती। या उसी नाटक में जो अगला स्टेप ले रहा है वो स्टेप न ले, उसको कुछ अलग स्टेप दिलवा दीजिए और देखिए किस कदर मेहम शुरू होता है। हो सकता है वो मेहम आपका नाटक हो। तो एक तो ट्रांसलेशन इटसेल्फ गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द क्राफ्ट ऑफ इट। क्राफ्ट के बारे में थोड़ी सी बाद में बात करूंगा, लेकिन उसका एक क्राफ्ट का एंगल मिल सकता है ऐसे मौके पर कि आप जब नाटक पढ़ रहे हैं तो एक क्राफ्ट। अब एक तो थोड़ा सा एक सजेशन और है, जोर से बोल के नाटक पढ़िए, और अगर आपने एक डायलॉग किसी तरह भेजा और उस आपको लगा कि ये कुछ कनेक्टेड नहीं है तो डायलॉग को ही अलग तरीके से कहिए। हो सकता है कि अगर आप उसको तंजिया कहें तो ठीक सही लगने लगे, हो सकता है आपको ह्यूमरसली कहें तो अच्छा लगने लगे, धीरे कहें, तेज कहें, कुछ ना कुछ। तो ये जो एक गिवन नाटक सब कुछ उसमें तैयार है, उसी में मैं एक नया नाटक तलाश करने की जो है, या बिल्कुल अगर एक अंग्रेजी नाटक है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है जैसा होना चाहिए उसको लिखिए। लैंग्वेज एक चीज है जिसके बारे में लोगों को अचानक लगने लगता है कि लैंग्वेज क्या लिखूं। मेरी अपनी राय ये है कि अपने आप के ऊपर ये अच्छा बुरा सही गलत कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल कंसिडरेशंस मत होने दीजिए। ये सारी री राइटिंग की बातें हैं।
और ये अपने आप आएंगी। इसलिए आप जिस अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी वगैरह सब में मिला के लिख सकते हैं, अपने कैरेक्टर्स के बारे में लिख सकते हैं, अपने कैरेक्टर्स को यू कैन मेक देम लाइव, उस तरह कम लाइव। तो उस तरह का जो सिलसिला है, आप अपने आप को जज करना बिल्कुल शुरू मत कीजिए, और ना ही अपने आप को जज होने दीजिए किसी और को, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है कि हाँ ये मैं कहना चाहता था या कहना चाहती थी, ये वाली फीलिंग की जो एक्सटेसी होती है वो एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है राइटर के लिए। और वो जो एक्सटेसी है, हम लोग नाटक उसी के लिए लिखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो जो नाटक हमने देखा वो किसने लिखा था, तो हमें वेविंग टू द क्राउड करने का मौका बहुत कम मिलने वाला है ऐसे मौक़ों पर। सो इट्स अ जर्नी विद इन। तो छोटे नाटक, बड़े नाटक का ट्रांसलेशन और एडेप्टेशन, पुटिंग देम इन अ डिफरेंट सिचुएशन फ्रॉम वेयर दे आर। एडेप्टेशन में इस मामले में बड़ा मज़ा आता है कि जो मिस्टर जॉन हैं उनको आपने श्याम कुमार बना दिया या अंकित कुमार बना दिया, अरुण सिंह बना दिया, विशाखा त्यागी बना दिया, या गीतिका मेहता बना दिया, या जो भी बना दिया। ये एक, जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो कितने ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे, उनका क्या बैकग्राउंड था और इनका बिल्कुल एक अलग एटमॉस्फेयर में क्या बैकग्राउंड होगा। तो एडेप्टेशन एक्चुअली गिव्स यू ए लॉट ऑफ आइडियाज टू राइट ओरिजिनल प्लेज, क्योंकि आपको एडेप्टेशन में, चाहे वो आप एक ही सीन का करें चाहे 2 सीन का करें, मज़ा आए तो पूरे सीन का कीजिए, उसमें आपको इस तरह से लिखना है कि वो ओरिजिनल है। आपने हालांकि इंस्पिरेशन लिया है, लेकिन द मोमेंट यू आर चेंजिंग द मिलियू, आप एक ओरिजिनल नाटक लिख रहे हैं। आप उसका डायलॉग ट्रांसलेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है उसकी शायद एजुकेशन लेवल अलग है, उसकी फीलिंग, क्योंकि उसके माँ बाप अलग किस्म के, हमारे यहाँ बड़ा पारिवारिक मामला होता है, वेस्ट में कई दफ़े नहीं होता, तो मेरे यहाँ पारिवारिक प्रेशर भी आ जाएगा, तो मेरा जो कैरेक्टर है वो ही अपने आप में थोड़ा सा बदल जाएगा। तो आप जब एडेप्टेशन कर रहे हैं तो बी श्योर एक्चुअली दैट आप एक ओरिजिनल नाटक लिख रहे हैं, और जैसे ही आप में वो फीलिंग आएगी वो नाटक ओरिजिनल होगा। अगेन, मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप पहली दफ़ा में उसके फाइनल स्क्रिप्ट लिख दें, और उसकी कोशिश भी करें। आप मेरा ख्याल है एक पूरा सीन करिए, जब जितना आपको कंफर्टेबल हो, गो बैक टू इट, और आगे क्या करना है अब आप सोचना फिर से शुरू कीजिए। गो बैक टू व्हाट यू हैव रिटन एंड प्लीज री राइट। कंप्यूटर पे तो काफ़ी आसान हो गया अगर आप लोग कंप्यूटर पे लिख रहे हैं। हालांकि फ्रैंकली मैंने अभी रिसेंटली, मुझे किसी ने पेन प्रेजेंट किया, तब मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मैंने बहुत दिनों से पेन और कागज़ का इस्तेमाल नहीं किया था। तो अचानक फिर मैंने, कोई आज से 10-15 दिन पहले मेरी बर्थडे थी रिसेंटली, तो मैंने फिर पेन और उसका मैंने बैठा, मतलब कागज़, तो उसका जो सेंसुअस प्लेजर था, द एबिलिटी अपने आप लिखना वगैरह, आई कांट इवन टेल यू व्हाट अ रेवलेशन इट वाज टू माई सेल्फ। मुझे लिखने की तबीयत हुई। मैंने जो आपसे बात करने के नोट्स बनाए वो हाथ से लिख के बनाए, तो उसमें एक अलग किस्म का मुझे महसूस हुआ। बहरहाल, दिस इज ओनली अ थिंग कि आप जैसे भी लिख रहे हो, एक अपने हाथ से लिखने में शायद ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें काटते हैं तब भी मज़ा आता है, और सब कुछ इसमें बहुत, आप फॉर्मेटिंग में बहुत लग जाते हैं। मेरे संग होता है, आप लोगों के संग नहीं होता, बिकॉज यू हैव ग्रोन अप विद द कंप्यूटर, आई हैव ग्रोन इनटू द कंप्यूटर मच लेटर। तो मेरे संग जैसे ही कंप्यूटर आता है, मुझे अपना कायदे से मेरा मार्जिन्स कैसे, मेरा गैप क्या है, कौन सा मेरा फॉन्ट है, इस किस्म की बातों में फंस जाता हूँ,
और मैं जो कहना चाह रहा था वो एक तरह से कई दफ़ा सेकेंडरी हो जाता है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट बिकॉज यू हैव टू बी, आज़ादी आपके लिए बहुत ज़रूरी है लिखते वक्त, नॉन जजमेंटल होना बहुत ज़रूरी है लिखते वक्त, और आपको अपने आप को रिवील कर देने की क्षमता होनी चाहिए उस वक्त। और आपको एक बड़ी हैरत होगी अगर आप एक खराब आदमी को बताएंगे। मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा एक मामूली आदमी का। अंकित, इन केस आई एम फॉरगेटिंग दिस, कि रंजीत कपूर साहब ने मेरे प्ले के बारे में क्या कहा था और अब मैंने क्या इम्प्रूवमेंट किया एक मामूली आदमी में, वो मुझसे पूछ लीजिएगा अगर मैं भूल जाऊं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी लर्निंग थी मेरे लिए। ठीक है, तो आई विल हैव टू कम बैक टू दैट। तो अब आप अपने जो आपके कैरेक्टर आपको मिला है उसके बारे में आप अटकलें लगाइए कि ये कैरेक्टर जो कर रहा है अगर वो उससे जो कह रहा है उससे कुछ अलग कहेगा। इसके अलावा कहानी का भी एक नाटकीय रूप करना, और एक बात मैं आपको बता दूं, नाटकीय रूप नाटकीय होना चाहिए। मैं देखिए, we must get the difference between, एक तो डोंट गो इनटू, इस सिनेमा और थिएटर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डिफरेंस भी है कि मैं अगर आपसे इस वक्त कहूँ कि मैं जलालुद्दीन अकबर हूँ, तो मैं जिस तरीके से कहूँगा, मेरा जो मैंने डिमीनियर करूँगा, आपको मैंने ये अब एक मैं वर्चुअल वर्ल्ड में ले आया कि मैं कुर्ता पहना हुआ, चश्मा पहना हुआ, पृथ्वीराज कपूर से कतई ऑपोजिट किस्म का आदमी, या ऋतिक रोशन से बिल्कुल अलग किस्म का आदमी अपने आप को अकबर कह रहा है, जिसने कुछ पहन भी नहीं रखा हो, जो खास उर्दू भी नहीं बोल रहा। लेकिन दिस इज व्हाट इट इज, इट हैज टू बी क्रेडिबल, इट डजंट हैव टू बी रियलिस्टिक, क्योंकि रियलिज्म के चक्कर में हम लोग वो बहुत सी बातों को मिस आउट कर जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली फिक्शन कैन बी फार मोर फैक्चुअल देन इवन प्रोज कैन एवर बी। तो फिक्शन में जो, क्योंकि एक इमोशनल टिंज होता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है जिससे आप समझ रहे हैं मेरे संग नहीं लेकिन मेरे जैसा हो रहा है, तो उससे आप आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फंसे ना इस चक्कर में कि ये रियलिस्टिक कैसे बनेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि इसको कैसे कैसे हुआ स्टेज पर, ये प्लीज फॉरगेट अबाउट इट, दैट इज नॉट योर जॉब एज अ राइटर। ये मेरे संग अभी अभी रिसेंटली हुआ है, इसमें मतलब वन कीप सफरिंग फ्रॉम दिस। मैं थोड़ा बहुत डायरेक्टर भी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा ही सफ़र करता हूँ शायद, कि मैं अपनी डायरेक्टोरियल लिमिटेशंस को भी अपने प्ले में ले आता हूँ। तो ये एक आपको नहीं करना चाहिए। आई एम जस्ट वार्निंग यू अगेंस्ट इट। मैंने एक प्ले लिखा था तारामती, एक बहुत थिएटर के बहुत बड़े आदमी हैं, आलोचक और जानकार, जिनका नाम है जयदेव तनेजा। तो मैंने उनको अपना एक नाटक तारामती पढ़ने को दिया, तो मैं उनसे कहना, मैं उसको रीराइट कर रहा था थोड़ा सा, तो 20वीं दफ़ा रीराइट कर रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि ये मैं चाहता हूँ कि किसी तरह जैसे मैंने लिखा है, मैं एक वो सीन लिखूं जिसमें तारामती जो है वो एक्चुअली उसकी रूह में, उसके उसमें भागमती की रूह आ गई है, क्योंकि भागमती और कुतुब कुली शाह का जो किस्सा है वो बहुत मशहूर है और मुझे आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा, वॉज माई कंसर्न। तो उन्होंने कहा कर दिए, लिख दीजिए। मैंने कहा लेकिन करेंगे कैसे? उन्होंने कहा आपसे मतलब, आप डायरेक्ट करना। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आप क्यों, लिख दीजिए बस। So then you are leaving it to the director, and he was absolutely spot on. And this I have learned now, क्योंकि मैं जो लिखता था वो अपने विजुअलाइजेशन और अपने लिमिटेशंस की वजह से लिखता था। अच्छा, मेरे संग ऐसा भी हुआ है कि मैं अगर एक प्ले कर रहा हूँ, दिस हैज हैपेंड टू मी, इसने मुझे बड़ा हम्बल भी बनाया हुआ है। वो खास हम्बल वैसे मैं हूँ नहीं, लेकिन हाँ, इसने बनाया था एक दफ़ा कि
एक दफा मैं प्ले डायरेक्ट कर रहा था, तो मुझसे मेरा एक एक्टर आके कहता है कि नहीं सर, जो आप कह रहे हैं वो गलत है, कैरेक्टर जो कह रहा है वो आप सुनिए। मुझसे मेरा एक्टर कहता है, प्ले किसने लिखा? मैंने। डायरेक्टर कौन है? मैं। लेकिन मेरा वही आदमी जिसको मैंने बताया कि क्या करना है, वो आके मुझसे आर्ग्यू कर रहा है कि ये तो कैरेक्टर नहीं कह ही नहीं रहा है। नाउ लुक एट दिस fabulous dynamics, which means that no matter what you write, उसका जो इंटरप्रिटेशन है, या जो आप कोई प्ले भी कर रहे हैं और 100 दर्शकों के बीच में कर रहे हैं, तो वो 100 दर्शक अलग अलग नाटक देख रहे हैं। वो जब बाहर निकलेंगे तो उन्होंने अलग अलग नाटक देखा। आपने अपने आप को उनसे बहुत आइडेंटिफाई कोशिश की कि देखिए, मैं इस बारे में नाटक कह रहा हूं, ये नाटक का विषय है, ये मेरे नाटक का रेजोल्यूशन है, ये मेरे नाटक का मैसेज है, आप कहते रहिए। वो सब नहीं जो प्ले मेरी ऑडियंस के दिमाग में हो रहा है, नाटक वो है। तो भाई, एक हमारे राइटर्स के लिए एक बड़ा अच्छा फीडबैक ये है कि मैं इसकी चिंता ही ना करूं। मैं अपनी दुनिया में उसमें जितनी क्रेडिबिलिटी ला सकता हूँ, उसका ही, लेट मी लिमिट माई सेल्फ टू दैट, लेट मी अपने कन्विक्शन से अपने उसको क्रेडिबिलिटी बनाते हुए ही लिखूं। बाकी कैसा पहुंच रहा है वो मेरा जॉब नहीं है। डायरेक्टर उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है मेरा जॉब नहीं है। जब मेरी स्क्रिप्ट को मैं खुद डायरेक्ट करूंगा तो आई विल हैव टू ट्रीट इट एज अ स्क्रिप्ट ऑफ समबडी एल्स। तभी मैं डायरेक्शन के संग जस्टिफाई करूंगा, नहीं तो मैं अपनी लिमिटेशंस को एक दफा फिर से ट्रांसफर कर दूंगा उसमें। एक जो अभी रविंद्र त्रिपाठी जी जब पहले दिन बोल रहे थे तो उन्होंने एक्टर्स से कहा था कि भाई आप ज़्यादा स्ट्रीट प्लेज मत कीजिए, आपकी आवाज़ को असर होगा। मुझे नहीं मालूम कि मैं उससे एग्री करता हूँ या एग्री नहीं करता, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो उससे काफ़ी अलग है। शुरू में इट बी ए नाइस आइडिया, इवन इफ इट इज़ टू बी डन ऑन स्टेज। प्रोजिनियम थिएटर में भी कर रहे हैं, उसको आप स्ट्रीट थिएटर की फॉर्मेट में लिखें। उसकी वजह है कि स्ट्रीट थिएटर की फॉर्म जब आप तरीके से लिखते हैं तो उसमें फॉर्मेलिटी बहुत कम होती है। उसमें कोई भी कुछ भी बोल देता है, कोई भी कहीं भी आ जाता है, कोई भी कहीं चला जाता है, किसी को अपना रूप बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को एंट्री एग्जिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको जो कहना है वो आप डायरेक्टली कह देते हैं। तो एक स्ट्रीट प्ले अगर आप लिखें, मतलब कि जो प्रैक्टिस करें, तो वो आपको एक बहुत बड़ी आज़ादी देता है, क्योंकि उसमें आप बहुत सारा कि लाइट इस तरफ से पड़ेगी, अब प्रकाश आता है, अब अंधेरा होता है, वो लेफ्ट से एंटर करता है कि राइट से एंटर करता है, धीरे एंटर करता है कि भाग के एंटर करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। यू विल हैव saved yourself from a lot of paraphernalia, और जो कहना होगा आपको कह देंगे आप। चाहे उसी नाटक को फिर आप प्रोजिनियम के रूप में फॉर्मलाइज करें, उस वक्त आपके क्राफ्ट काम में आएगा। लेकिन आपको जो कहना था वो आपकी लैंग्वेजिंग हो चुकी है। उसके बाद लैंग्वेजिंग इज अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन इंसिडेंटली। उसके लिए आपको हमेशा अपनी एक नीश ऑडियंस सोचनी पड़ेगी। जैसे मैं आपसे बोल रहा था, तो कल मैंने परसों से खास तौर से इसलिए देखा कि जो बोल रहे हैं और जो सुन रहे हैं और जिस किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने देखा कि सारे क्वेश्चंस अंग्रेजी में आते थे। तो फिर मुझे लगा कि जैसे कि बहुत सारे बड़े विद्वानों के बीच में डिस्कशन हो तो कहते हैं वो इतनी संस्कृत नुमा हिंदी में भी हो जाया करते हैं कई दफ़े कि मेरे सर से ऊपर निकल जाता है। कई दफ़े जो उर्दू की महफिलें होती हैं वो इतनी उर्दू में होती हैं कि वो भी मेरे ऊपर से निकल जाती हैं। अंग्रेज़ी तो इन्हें नहीं, किस कभी कभी समझ में आती है, तो उसकी तो बात अलग है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो लैंग्वेजिंग है वो अपने आप में एक मसला है, क्योंकि हम लोगों का जो ट्रेनिंग है, हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है, दैट हैजंट रियली honed us in one single language। हम लोग जो पर्सनालिटी हमारी वो मल्टीपल लैंग्वेजेस की। और आप लोगों के संग तो व्हाट्सएप, मेरे ज़माने में ऐसा नहीं था, व्हाट्सएप, ईमेल,
SMS वगैरह इस तरह की दुनिया से लैंग्वेज से एक अलग किस्म का नाता बन गया है, जो कि मेरा नाता नहीं है लैंग्वेज से। मुझे अब भी पूरा सेंटेंस और एब्रिविएशन और उस किस्म की चीज़ें जो हैं उनसे मतलब मैं मज़ा आता है मुझे, लेकिन ये कि वो मेरे अंदर से नहीं पैदा होती। मैं अपने आप को यंग आज का आदमी दिखाने के लिए वो सब करता हूँ, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इट डजंट कम एज नेचुरली टू मी। मतलब मेरा कुछ फोन सेल फोन में ख़राब होता है तो आई एक्चुअली गिव इट टू द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली कि ज़रा ठीक कर देना। तो आई नो दैट आई एम ज़रा हमारा जो ज़माना है वो थोड़ा सा बदल गया है। बट हैविंग सेड ऑल दिस, आप एक जब नाटक लिखेंगे और उसको करेंगे तो काफ़ी हद तक इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज चेंजेस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी तो होगी। कहानी का जो मैंने जिक्र किया था कि कहानियाँ, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हो सकती है कि ह्यूमर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑन सच ओकेजन्स। कि आप अगर समझ लीजिए हरिशंकर परसाई या शरद जोशी या मनोहर श्याम जोशी, जिनको मैं बिल्कुल कॉमिक राइटर नहीं कहूँगा, तीनों में से किसी को नहीं कहूँगा, उसमें वेरी ऑफन कॉमिक राइटर इज़ द मोस्ट सीरियस राइटर। और इसी तरह उर्दू के बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं जो कि रेख्ता में हिंदी में भी अवेलेबल हैं, देवनागरी में भी अवेलेबल हैं, जिसमें कन्हैया लाल कपूर, मुश्ताक अहमद यूसुफी बहुत ही उम्दा, और पतरस बुखारी वगैरह हैं। जिनको पढ़िए तो उसमें जो किस्से करते हैं वो जिस अंदाज से कहते हैं उससे आपको एक कहने का तरीका मिलता है। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है लिखने में, ह्यूमर और सार्कज़म में फ़र्क करना, व्यंग और ह्यूमर में फ़र्क करना। ह्यूमर से बहुत सारी बातें बदल सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, अच्छा गुड ह्यूमर होना और उसको अच्छी तरीके से कहना, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ नॉट जोक्स ओनली, सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ अ होल लाइफस्टाइल। जैसे ही आप तंज शुरू करते हैं तो जिसमें आप बदलाव चाहते हैं, जिसके ऊपर आप तंज कर रहे हैं, उसका बदलना और भी मुश्किल हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई सार्काज्म इज कंसिडर्ड द लोएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमर। उसमें मुझे साउस बहू नजर आने लगता है हमेशा ही। तो ह्यूमर और उसकी दुनिया। अच्छा, नाउ लेट मी जस्ट गो क्विकली, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, इसलिए मैं आई जस्ट गो वेरी क्विकली इनटू क्राफ्टिंग अ प्ले। अगर आप गूगल पे जाएं तो आपको बहुत सारे प्ले राइटिंग लिख दीजिए, आपको 10 तरीके मिल जाएंगे कि कैसे प्ले लिखा जा सकता है। इसके अलावा जैसे मैं उसका एग्जाम्पल लूँगा, स्क्रीन राइटिंग के भी बहुत सारी किताबें हैं। अब जैसे स्क्रीन राइटिंग की मतलब सिर्फ एक किताब का एक इम्प्रेशन लेके आपको बता रहा हूँ कि आपको किसी भी कहानी को 4 लाइन में कहने का, आपने 3 घंटे की फिल्म देखी है, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, कितने भी, आपको उसकी कहानी अगर आप 4 लाइन में कह सकते हैं तो आपको कहानी समझ में आई, तो उसमें कहानी है। वो सिर्फ एक सिचुएशन का एलैबोरेशन नहीं है। लेकिन अगर आप 5वीं लाइन में जाते हैं तो पर प्रॉब्लमेटिक है ऑलरेडी। मैं कभी आपसे कभी मुलाकात होगी तो मैं इस तरह की बात करूंगा, पूछूंगा इसके 4 कहानियों में 4 लाइनों में सुनाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इससे प्रिसिशन बड़ा समझ में आता है। बहरहाल वो 4 लाइनें आर टू बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज के पहला है डिजायर और लेट अस से स्टेटस को। पर शाहरुख खान और रानी मुखर्जी या काजोल बड़ा सुंदर गाना गा रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे सुंदर डिजाइनर कपड़े पहन रखे हैं, तो डिजायर मेरी ये है कि भैया ऐसा ही चलता रहे। द नेक्स्ट इज प्रेमिस, एक दिन ऐसा हुआ कि, अब एक दिन ऐसा हुआ कि इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ प्ले राइट। व्हाट इफ आप कॉन्स्टेंटली पूछेंगे, जो फिल्म में शायद मैं एक दफा ही पूछ रहा हूं
क्या हुआ, अचानक एक विलन आया और उसकी नज़र, चूंकि विलन की नज़र हमेशा ख़राब होती है, वो किस पर पड़ेगी? शाहरुख पे ही पड़ सकती है, लेकिन पड़ी उसकी रानी मुखर्जी पे। उसके बाद क्या पैदा हुआ? कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपके नाटक या मूवी का सबसे अहम हिस्सा है, एंड दिस एक्वायर्स अबाउट 2/3 ऑफ द स्पेस, जिसमें आप एक कॉन्फ्लिक्ट की रचना करते हैं। अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट अच्छा है तभी उसके रेजोल्यूशन का मैं इंतज़ार करूँगा। अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट या आपकी समस्या या जो भी आपकी सिचुएशन इंट्रिकेसीज हैं, उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं मेरे हीरो के सामने, अगर वो नहीं होंगी ज़्यादा तो मैं इंटरेस्टेड भी नहीं होऊंगा कि होगा क्या। फाइनली रेजोल्यूशन, अगर गुलशन ग्रोवर काजोल को ले आता है तो ट्रेजिडी, और शाहरुख के पास काजोल रहती है तो मतलब खुशी खुशी प्ले हो गया। लेकिन आई विल गो बैक टू दिस, जो उसमें क्लाइमेक्स चीज़ होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्ले में भी और फिल्म में भी। क्लाइमेक्स वो जगह है जहाँ पर जो भी आपने एलिमेंट्स अपने प्ले में या अपने फिल्म में इस्तेमाल किए हैं उन सब का होना ज़रूरी है। वो सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी रूप में वहाँ पर प्रेजेंट हैं, क्योंकि उन्होंने ही सब ने आपका एक कॉन्फ्लिक्ट बनाया है और उनका रेजोल्यूशन। चाहे आप बाद में कहें कि नहीं ये सवाल नहीं सॉल्व किया जा सकता, वो अपने आप में एक रेजोल्यूशन है। लेकिन जब आप प्ले लिखें या कुछ में, तो आपने जो भी एलिमेंट्स इस्तेमाल किए हैं, एज यू आर गोइंग टूवर्ड द क्लाइमेक्स एंड द रेजोल्यूशन, इट्स इम्पोर्टेंट टू सी वेदर जो भी आपने ओपन एंडेड चीज़ें छोड़ रखी थी वो है कि नहीं। इसलिए कई दफ़ा बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि मुझे अपने कैरेक्टर में ये ज़रूरी है करवाना इस वक्त, और जो मुझे समझ में आया है अब, लेकिन वो मैंने अभी तक नहीं किया था। सो आई विल हैव टू गो बैक एंड पुट दैट सीड समवेयर। तो मेरा लिखना कोई लीनियर किस्म की चीज़ नहीं है, वो हो सकता है मैं पीछे भी जाऊँ आगे भी जाऊँ, इस तरह की चीज़ें बार बार होंगी और होनी चाहिए, तभी एक डायनेमिक प्ले बनता है, तभी एक गर्म प्ले बनता है। मुझसे एक दफ़ा बहुत दिनों पहले, जब मुझे पता नहीं था, मैं तो बड़ा अभी तक थिएटर वाला नहीं हुआ था, मुझसे कोई पूछता था कि आपकी लेखन प्रक्रिया क्या है, आप कैसे विषयों पर लिखते हैं, तो मुझे बिलीव यू मी, मैं आई फाउंड इट इम्पॉसिबल टू आंसर सच क्वेश्चंस कि क्या प्रक्रिया क्या होता है, मुझे नहीं पता था। तो बहरहाल मैंने स्मार्ट था, यंग था तो बड़ा स्मार्ट था, तो मैंने कहा कि I want to write about a world in which I want to live. ये वाली बात मैंने कही थोड़ी सी स्मार्टनेस के सिलसिले में थी, लेकिन ये मुझे बड़ी सही लगने लगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि व्हाट डू आई राइट अबाउट। अल्टीमेटली आई राइट अबाउट व्हाट आई वांट माय वर्ल्ड टू बी, और वो उससे भी कह सकता है कि जो मतलब मैं ऑपोजिट लिखूं इसका कि वर्ल्ड ऐसा है। इस मेरे जो पहले, मैं आई वेरी क्विकली गो थ्रू द रेस्ट ऑफ द थिंग विच इज़ अबाउट माई ओन प्लेस, मेरा अपना डेवलपमेंट। मेरा जो पहला नाटक था उसमें मैं पता ही अपने आप को, मैंने कोई ज़िंदगी में 25 साल तक कोई थिएटर नहीं किया था, मैं कोई ख़ास थिएटर की फैमिली से नहीं आता था, मैं शायर था, और मुझे मेरी आवाज़ की वजह से एक अंधा युग में रवि बासवानी थे, उसमें एम के रहा था, मुझे लिया गया और उसमें मेरी आवाज़ की वजह से बड़ी कामयाबी मिल गई। अब मुझे थिएटर का शौक तो लग गया, अब मुझे ना एक्टिंग आता था ना कुछ आता था, और मैंने और शौक लग गया है तो बड़ी गलत बात हुई यार, कब तक देखूंगा, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। तो फिर उन्होंने, किसी ने मुझसे कहा कि आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो ये एक प्ले लीजिए, इसको आप ट्रांसलेट कीजिए। तो वो जो प्रोसेस था उसका नाम था द होल टाउन स्टॉकिंग, और प्ले का नाम था चर्चा गली गली। इट वॉज अ कॉमेडी। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि उसमें आई इन्वेस्टेड सो मच ऑफ माई सेल्फ इन टू इट फॉर क्रिएटिंग ह्यूमर, एंड आई लव टू क्रिएट ह्यूमर एक्चुअली। तो वो हुआ पैदा और मैंने ही डायरेक्ट किया, इस कदर कामयाब हो गया, फिर तो मेरे ऊपर थोड़ा सा और रस लग गया। लेकिन नेक्स्ट प्ले वॉज अ टोटली ऑपोजिट काइंड ऑफ अ प्ले। बर्टोल्ट ब्रेश्ट का नाम आप लोगों में से शायद बहुत नहीं, शेक्सपियर एंड बर्टोल्ट ब्रेश्ट आर टू वेरी
इम्पोर्टेंट वेस्टर्न प्ले राइट्स जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं कई चीज़ों में है। तो बर्टोल्ड ब्रेश्ट बिल्कुल इडियोलॉजिकल प्लेस लिखते थे, पॉलिटिकल प्लेस लिखते थे, और उनका तरीका जो आपने सुना होगा मेथड एक्टिंग का ऑपोजिट होता था कि एक्टर जो है वो डिवाइस है, वो एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि देखिए मैं, वो इस तरह से बता रहा है कि देखिए एक दिन वहां पे एक कुली जा रहा था, मैं आपको बताता हूँ कुली कैसे जा रहा था, तो कुली को जाते हुए बताएंगे, वो एक्टिंग है ब्रेश्टियन एक्टिंग, एलिनेटेड है, मैं एक्टर अलग हूँ और वो जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ वो अलग है, वो उनका तरीका है। मेथड एक्टिंग है कि मैं ही कुली हूँ, इन दोनों में फर्क है। तो ब्रेश्ट का एक बड़ा मुझे बहुत पसंद है वो नाटक, द एक्सेप्शन इन द रूल, क्योंकि मेरी अपनी ह्यूमन कंसिडरेशंस और आइडियोलॉजिकल उससे एक मेरी इमीडिएट मुझे वो मिलता था, साथ मिलता था मुझे, तो मैंने उस नाटक का वो किया एडेप्टेशन, वो कतई अलग एटमॉस्फेयर में था लेकिन इन नोवेयर था वो, तो इससे आसानी हुई मुझे। उसमें काफ़ी गीत थे तो मेरे शायर होने का बड़ा एडवांटेज मिला, तो वो मैंने नाटक किया जो कि पिछले वाले नाटक से बिल्कुल अलग था। और तीसरा नाटक मैंने किया, एक जाना माना नॉवल है एनिमल फार्म, उसका मैंने एडेप्टेशन किया जंतु परंतु के नाम से, मृणाल पांडे जो हमारी जानी मानी लेखिका है उनके साथ मैंने किया था। आज अगर मैं करूं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन उस जमाने में मैंने ऐसा किया था। तो इन्होंने मैंने एक्सटर्नल सोर्सेस थे, मैंने इनको अपना बनाया, उसके बाद मैं आगे बढ़ा। और पहला नाटक जो मैंने मौलिक अपने आप बिल्कुल अपने आप सोच के लिखा, वो उसका नाम था उस ज़माने में नाम था रवि और रवि, और उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला। और कॉमेडी को अवार्ड इतना मिलता नहीं है, लेकिन मुझे मिला, तो ये अपने आप में एक बड़ी कॉमिक बात है। तो वो उसके ऊपर फिल्म बनी है, बड़ी उम्दा फिल्म है, और अब मैंने उसका नाम कर दिया व्हाट्स इन अ सरनेम। नाउ ये एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंगली जितना सीरियस सब्जेक्ट हो उसको उसके टर्न इट ऑन इट्स हेड उतनी अच्छी कॉमेडी बनेगी। तो ये इशू था रिजर्वेशन इशू, जिसमें इस कदर 1980s में इस कदर इसका हल्ला था, रोज़ाना वो होते थे, लोगों ने सुइसाइड किए, आत्मदाह पूरे पब्लिक में वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें चल रही थी। तो ऐसे मौके पे मैंने आई रोट अ कॉमेडी। ना हाउ वन वुड राइट अ कॉमेडी, मुझे उसका एक्सपीरियंस था, मैं कॉर्पोरेट जॉब में था। तो एक साहब आए मेरे पास, तो उन्होंने कहा लाल साहब आपसे बात करनी है। मैंने कहा फरमाइए। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि जो है ना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले, इन्होंने अपना एसोसिएशन बना लिया है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एसोसिएशन, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। मैंने उनकी बात सुनी, मैंने कहा देखिए मैं आपकी तरह इसलिए नहीं सोच सकता कि आई बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट। मैंने उनसे सज्जन से बात कही, मैंने किसी की भी जॉ इतनी ड्रॉप होती हुई नहीं देखी आज तक। जो उनका चेहरा था वो मेरे लिए कॉमेडी का, वो एक इंसिडेंट बिकेम माई सब्जेक्ट फॉर कॉमेडी। मैंने कहा जो मेरे अंदर इस कदर कि मैं आप जो किसी बड़े जाति वाले से बात कर रहा हूँ तो मैं उसके ऐसे बनने की कोशिश करूँगा, ये कोई जो मेरा खुसफुस करने का तरीका होता है ना, अपने गले में मिल जाने का तरीका, इसको बदलना ज़रूरी है। तो दिस अट्रैक्टेड मी वेरी मच। तो मैंने शेड्यूल कास्ट हमारा जो बच्चा था उसको मैंने उस वाली सिचुएशन में डाल दिया, उसको जो शेक्सपियर किया करता था कॉमेडी ऑफ एरर कर दी, और मे हिम आई स्टिल लव इट। उसके बाद और भी लिखे, लेकिन एक मामूली आदमी बिकेम माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले, जो कि सबसे ज़्यादा आज तक वो किया गया है। और उसके बाद जो मुझे एक और इम्पॉर्टेंट प्ले लगता है, लिखा तो बहुत और भी हैं, वो है मेरा प्ले शत्रु। तो अब मैं अपना इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि कहने को तो शायद बहुत कुछ है इस वक्त, कि हम अब बातचीत के ज़रिए आप लोगों का अगर कुछ कहना है, जो भी कुछ करना है, उसके ज़रिए बात आगे बढ़ाएंगे। और मैं अपने एक्सपीरियंस जो एक मामूली आदमी को लेकर हैं, शत्रु को लेकर हैं, तेरा नाम मेरा नाम या व्हाट्स इन अ सरनेम, या बाकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस है, किसी और के नाटक को पढ़ के एक्सपीरियंसेस हैं, वो शेयर कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, और
Sorry for having muted you for all this time. So now go on. Yes, it was our. Hello, am I audible? Yeah. Yes, you are. सही हम ओके सही है। वैसे हमारी कुछ किस्मत है कि हमें आपको सुनने का मौका मिला। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिलेटेड हैप्पी बर्थडे Oh, आपका। thank you. Uh, Thank you. so I would like to request all the participants to just drop their questions in the chat box. I will ask the questions one by one. सर आपने मुझे एक चीज याद दिलाने के लिए कहा था। रणजीत कपूर जी ने जो आपको एक मामूली आदमी के नाते से कुछ बदलाव के लिए बात हाँ, वो इम्पोर्टेंट बात है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बहुत अच्छा आदमी, बड़ा तमीज़दार, उर्दू में जी तहजीब तरीके से बात करता हूँ सब कुछ। और उसमें एक सीन था जिसमें जो झोपड़पट्टी की औरतें आके शोर मचाती हैं उसके यहाँ, तो मेरे यहाँ तो बड़ा शाइस्तगी से सीन चलता था। उन्होंने कहा वो ऐसे नहीं बोलेंगी, और मुझे गालियाँ वो सब आती हैं, मुझे सारी गालियाँ आती हैं, ठीक है, मुझे सारे तरीके आते हैं बोलने के, लेकिन मेरी माँ ने मैंने कर रखा है कि मत सुनो, उनको भी आती होंगी, उनको उनके मतलब मालूम होगा। लेकिन रंजीत कपूर उससे बहुत बड़े राइटर हैं, वो उससे ऊपर उठ गए। उन्होंने कहा नहीं, आपके इस सीन को मुझे रफ करना चाहिए, आपको रफ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मुझे मतलब कशिश थी, तो उनके संग बैठ के मैंने उसमें वो आपने अगर पढ़ा है तो नाउ यूल फाइंड दैट देयर इज अ होल लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कम सिमिलरली। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है जो मुझे बड़ा कॉन्शियस था कि मैं बड़ी ग्रेट लाइन कह रहा हूँ और लोग समझेंगे मैं बड़ा स्मार्ट हो रहा हूँ। ये भी उसी एक मामूली आदमी के सिलसिले में, जैसे कि वो पीने, आप लोगों ने जिसने भी पढ़ा है, तो जो अवस्थी और खरे आपस में ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक तो खरे साहब कर रहे हैं, लेकिन वो जो ड्रिंकिंग का सीन है उसमें मुझे एक अपना सेंटेंस बड़ा प्यारा लगता था। वो ये था कि जब तक जिंदा हूं तभी तक तो जहर चख सकता हूं। ये बड़ा मुझे पसंद था। अब मैं इसको कहूं कैसे, क्योंकि ये मुझे लगा यार ये समझेगा कि मैं स्मार्ट हूं, इसलिए मैंने सेंटेंस लिखा, राइट। और मुझे एज अ शायर ये पहला सेंटेंस सूझा। इसमें इसको इसकी तफसील कराने में मुझे तरीका बताया उन्होंने, रंजीत साहब ने, कि स्टार्ट सीडिंग इट बिफोर, जो मैंने अभी आपको बताई ना कि इसके, तो उन्होंने सीन ही में उसकी बात शुरू कर दी, चीयर्स की बात शुरू इस तरह से की कि ये यहाँ तक पहुंच जाए। तो मैं उसको शायद इतना जंप करवाते था, उन्होंने उसको कॉम्प्लेक्स बनाया, एंड एक्चुअली दैट मेड फॉर द प्ले। तो दो बातें हुई। एक तो ये कि मुझे अपना भैया, अपनी जो बड़ी तहजीब और पढ़ा लिखा हूँ उसकी ज़रूरत नहीं थी, दैट हैड टू बी चेंज एंड आई कैन यूज़ एनी बॉडी फॉर दिस। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रंजीत कपूर एक्चुअली। इसी तरह सीन के एक्सपेंशन में इस तरह की बातें बहुत मदद करती हैं। ठीक है साहब, थैंक यू। थैंक यू सर फॉर सच शेयरिंग सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सवालों का दौर शुरू करते हैं क्योंकि काफी सवाल आ गए हैं। तो पहला सवाल है शुभम गमीजा से। इज आस्किंग सर, okay, I felt like all the things that you said were in front of me, but you just gave a different meaning to it. Thanks a lot, sir. I have a question about the ending of the play. How to give a good ending? What is a good ending? हाँ, एक्चुअली मेरे पास इस वक्त मैं किसी की भी मदद लेने को तैयार हूँ। उसमें मैंने 2-3-4 नाटक लिख रखे हैं जो अपनी तरीके से कंप्लीट है, और मैं इस कदर नाखुश हूँ उनकी एंडिंग से। और मैं सोच रहा हूँ मैं किस तरह से थोड़ा मेहम क्रिएट करूँ, किस तरह से उसको कॉम्प्लेक्स बनाऊँ। तो भाई ये ना किसी ज़्यादा बुजुर्ग या अच्छे प्ले राइट से पूछिए, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक छोटे से एज ए प्रिंसिपल जो मैंने आपसे कहा था कि जो भी एलिमेंट्स आपने, जो आपको जो एंडिंग बनानी है, प्लीज टेक ए लुक एट द एलिमेंट्स दैट यू हैव इंट्रोड्यूस्ड। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना भूल गया और कहना चाहिए था, वो ये कि अक्सर मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में कह सकता हूँ कि मुझे एक बात कहनी होती है,
मुझे वो बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि मैं नाटक क्यों लिख रहा हूँ। जैसे एक मामूली आदमी के में आप बिलीव नहीं करेंगे ये बात कि लोग किसी को भी एक आम आदमी कह देते हैं। आम आदमी इज सच अ जजमेंटल टर्म कि मैं और आप जो बात कर रहे हैं, हम लोग तो बड़े खास लोग हैं, बाकी जो भी सड़क पे जा रहा है इस वक्त वो सब आम आदमी है। ये जो आम आदमी का कॉन्सेप्ट, आम वर्सेस मामूली, नाउ दिस वाज लाइक एट माय हार्ट। तो दिस आई नेवर लेफ्ट। आई वुड बी वेरी हैप्पी कि अगर आप जिस वजह से वो एक सेंटेंस, वो एक थॉट, वो एक बात जो आप कहना चाह रहे हैं वो जरूर कहिए। तो हो सकता है आपको, आपने जो एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं अपने नाटक में, या जो आपने अपनी बात कह ली है इसके ऊपर दोबारा जिक्र कीजिए, तो आपको अपनी एंडिंग की तरफ एक कम से कम पॉसिबिलिटी तो मिल ही जाएगी। जी, आई गेस शुभम को अपना जवाब मिल गया है। सर सेकंड क्वेश्चन की भाई तरफ बढ़ते ना हैं। मिला हो तो दोबारा मत पूछना, ना मिला हो तो दोबारा मत पूछना, दैट्स ऑल आई नो। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है अश्विनी जी का। ये पूछ रहे हैं, माइंड में आइडिया आता है कि जब आइडिया आता है किसी चीज को लिखने का, तो उसको पेपर पर लिखने पर वो चीज एक आध पेज पे ही खत्म हो जाता है। तो अपने आइडिया, स्मॉल आइडिया को कैसे लार्ज स्केल करा जाए? ओके, मेरा ख्याल है इसको एक हमारे बड़े बहुत ही मशहूर क्लासिक प्ले राइट वो थे सिनेमा वाले दिसाइका, वो ये कहते थे कि अगर एक आइडिया मुझे आया है, वही आइडिया कल भी आता है और 4 दिन बाद भी आता है, तब तो वो आइडिया परसू करने काबिल है। अदरवाइज भूल जाइए, वो जैसे चला गया वैसे उसको जाने दिए, वो इम्पोर्टेंट था ही नहीं। एक तो ये तरीका है देखने का। मुझे वो तरीका इतना अपील नहीं करता, उसकी वजह मेरे लिए शायद शायर होना है मेरा, क्योंकि मैं जब घूमने जाता हूँ तो मैं कम से कम ये गज़ल तो हमेशा कह ही लेता हूँ। वो आज तक लिखी नहीं गई लेकिन मैं कह लेता हूँ। सिलसिला ये है कि मैं अगर एक आइडिया आया है, मुझे पता नहीं है कि उस आइडिया में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, मुझे सिर्फ एक उसका फीलिंग आई है। जब देखिए, देयर इज नो आइडिया, ओनली अ फीलिंग जस्ट नाउ, क्योंकि अनलेस यू स्टार्ट पुटिंग इट इन ब्लैक एंड वाइट, यू एक्चुअली डोंट नो व्हाट दैट आइडिया इज। आप उस आइडिया में कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, उस आइडिया की पोटेंशियल क्या है, आपको नहीं मालूम। देयर इज नथिंग लाइक कि मुझे एक आइडिया आया हुआ है, फीलिंग आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आइडिया को एक इन टू सी एज एन आइडिया, इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू पुट योर पेन एंड पेपर टुगेदर। नाउ वंस यू पुट अ पेन एंड पेपर टुगेदर, देन इट विल बी अवेलेबल टू यू। यू विल बी, उसमें जान कितनी थी, उसमें डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि उसी आइडिया को, क्योंकि आपने लिख लिया है, सिर्फ लैंग्वेजिंग में ही आपने एक एंगल दे दी है, क्योंकि उसमें पास्ट परफेक्ट सेंस इस्तेमाल कर लिया है या कोई अलग किस्म की चीज, एक लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है, दैट ट्रिगर्स ऑफ अ न्यू थॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नथिंग लाइक एक आइडिया आया और मन से निकल गया, देयर इज नथिंग लाइक एन आइडिया, देयर पास झोंका था वो आके निकल गया। प्लीज यूज योर पेन एंड पेपर, देन आइडिया होता है आपको। जब जो फीलिंग होती है, दैट इज नॉट एन आइडिया। लैंग्वेजिंग योर फीलिंग गिव्स यू एन आइडिया ओनली। Thank you, sir. That's very important to convert your feelings into text, I guess. So next question is for Manas Lal. He's asking, do you as an audience prefer What in a Surname as a theatrical production or a movie? Did the movie do justice to your idea as a playwright? भाई वो पहली फिल्म बन रही थी मेरे किसी भी लिखे हुए पे, और मैं तो बड़ा मजा आ रहा था मुझे कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। और
द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो उसकी स्क्रिप्टिंग फॉर द मूवी थी, स्क्रिप्टिंग फॉर द स्टेज से काफ़ी अलग हो गई। तो मेरा जो प्रोसेस चल रहा था उस ज़माने में ये सीखने का कि हाउ टू कन्वर्ट अ सीन विच हैज़ टू बी डन फिजिकली ऑन स्टेज और उसकी लिमिटेशंस के साथ, और दैट बीइंग कन्वर्टेड इनटू इवन अ सॉन्ग सिचुएशन और थिंग्स ऑफ दैट नेचर। तो वो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस है था। तो मुझे दोनों में ज़रा सा भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। That's so sweet of you, sir. You are so open to adaptations. What? Okay. So I'm saying that you are so sweet that you are so open to adaptations. Like that's so good for यार मैं us. Like पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, बड़ा अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बोलो। Okay. Let's move to the next question. अगला सवाल इर्तिजा से ये कहते हैं आपका तलफ्फुज़ बहुत साफ है, एक एक्टर को इसे कैसे बेहतर करना चाहिए? ये तो सवाल मेरा भी है। भाई देखो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ना मेरा कोई क्रेडिट है। उसकी वजह ये है कि मैं जिस फैमिली से हूँ उसमें मुझसे 3 बड़े भाई, 2 बड़े भाई और मेरे अब्बा जान, ये लोग शायर थे। हमारे यहाँ बड़ा उर्दू का एटमॉस्फेयर था। वी हैव ऑल कम फ्रॉम स्मॉल टाउन्स एंड वेरी लोअर मिडिल क्लास बिगिनिंग्स, लेकिन लैंग्वेज के लिहाज से एक बड़ा एनरिचमेंट था इस किस्म का। माँ हमारी जो थी वो हिंदी की विदुषी थी, मेरे जो फादर थे वो उर्दू और अंग्रेज़ी वाले थे। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर रहा। तो नाउ बट जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं, लता मंगेशकर हों या आशा भोंसले हों या किशोर कुमार हों, या ये एक बंगाली आदमी हैं, एक लता और आशा बिल्कुल मराठी हैं, उनका वो है। लेकिन उन्होंने पहले नूरजहां और उसके बाद शमशाद बेगम, इनको फॉलो किया। इनके ऑलमोस्ट जैसे कहना पैरों में बैठ के, चरणों में बैठ के तलफ़्फ़ुज़ समझा, दिलीप कुमार से बहुत हेल्प ली, इस तरह की चीज़ें। ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन इसमें फंसना नहीं चाहिए। ये अच्छा लग रहा है, इसमें फंसना नहीं चाहिए अनलेस आई एम डूइंग अ पीरियड प्ले। Like if I am doing, let's say, a Mughal king, then I'll have to be a little more aware and I can always take help for the language part of it. But let me tell you that even there, अगर आपको लगता है कि अकबर जिस किस्म की ज़बान मुग़ल आज़म में इस्तेमाल हुई है, चलो गाए जिंदान वो नहीं होगा कतई। वो कहता होगा सुनो ज़रा वो थानेदार को बुला लाना, बिल्कुल ऐसी ज़बान करता होगा, क्योंकि भैया वो अवधी और इस तरह की लैंग्वेज बोलते थे। कोई ये जो पर्शनाइज उर्दू का बिल्कुल ज़माना नहीं था। उर्दू अपनी आंखें खोल रही थी उस ज़माने में। It was not such a rich kind of a language that we and you and I know about. Okay, it's a later development. तो उस वक्त तो मिक्सचर हो रहा था, तो ये लोग ऐसे। लेकिन अब मुझे उसे क्रेडिबिलिटी लाने के लिए वो वाला मैं लैंग्वेज डाल देता हूँ, ताकि उससे एक तहजीब और एक शख्सियत का मुझे अंदाज़ा मिले। मैं एक आई जस्ट टेक 1 more minute। मेरा एक नाटक है शत्रु, जो मेरे लिए अब कई वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शत्रु में ये है बुद्ध के ज़माने का प्ले, अजात शत्रु के ऊपर ये नाटक है। अब जिस तरीके से नाटक मेरे जहन में आया, ये काफ़ी क्लासिकी तरीके से लिखा गया है। अब उस ज़माने में ये लोग पाली बोलते होंगे, हिंदी बोलते होंगे, या क्या बोलते होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि संस्कृत वॉज नेवर ए लिंगुआ फ्रैंक, कि मैं आपस में हम लोग संस्कृत में बातें कर रहे हैं, तो इस तरह का मुझे नहीं मालूम कि सिवाय विद्वानों के बीच में होता हो तो होता हो। इनफैक्ट वॉज नॉट अलाउड टू बी जनरल लैंग्वेज एनीवे। खैर, बी दैट एज इट में। लेकिन मैंने जो इसमें पहला एक नाटक ऐसा लिखा है ये वाला, जिसमें मैं खूब हिंदी इस्तेमाल की।
जिसको आप हिंदी कहते हैं, असल में वो भी हिंदी है नहीं, क्योंकि हिंदी खड़ी बोली से आई थी। लेकिन मैं किसको हिंदी कहने लगा हूँ? जिसमें मैं संस्कृत इस्तेमाल करता हूँ, और संस्कृत में एक क्लासिसिज्म मिलती है। तो जिस तरह से अकबर की उर्दू गलत थी, उसी तरह इनकी जो मैं लैंग्वेज इनसे बुलवा रहा हूँ, अजात शत्रु और बिंबिसार वगैरह से, वो उनकी लैंग्वेज नहीं है। एंड आई शुड बी वेरी क्लियर, एंड आई एम राइटिंग इन ए मेक बिलीव काइंड ऑफ अ लैंग्वेज, वेयर आई एम क्रिएटिंग एन एटमोस्फियर कि भैया समझ लेना कि प्लीज क्लासिक है ये, इसका रियलिज्म से कोई लेना देना नहीं। हर शैली के अपने कुछ अच्छी बातें होती हैं जिन्हें आई गेस नहीं छोड़ना चाहिए। सर नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हर्षिता का। शी इज सेइंग हाउ टू कीप योरसेल्फ इन चेक एज अ राइटर, कि आप पहले की ट्रैप्स और प्रॉब्लम्स जो ओवरकम कर चुके हैं उनमें दोबारा ना फंसें, और बिकॉज इवन इफ यू आर अ वेरी एस्टैब्लिश्ड राइटर यू कीप ऑन रनिंग इनटू दोज मिस्टेक्स अगेन। यार ये सवाल किसी और से पूछो, क्योंकि मेरी वही प्रॉब्लम जो आज से 40 बरस पहले थी वो अभी तक है। थोड़ा बहुत एक कॉन्फिडेंस तो आया है कि देखिए मैं बहुत लेजी आदमी हूँ, तो मैं हमेशा लिखना कल के लिए पोस्टपोन करता रहता हूँ। तो वो क्या चीज़ है उसमें कि रिलक्टेंस टू पुट योर आइडियाज ऑन पेपर, अपने फॉर्मुलेट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और मैं उसको एक बहाना बना रहा हूँ कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में करूँगा वगैरह वगैरह। देखिए अगर आपके पास कंपेलिंग रीज़न है लिखने का, प्लीज़ तभी लिखिए। अगर आप वही, लेकिन कॉमेडी से शुरू करिए तो आपका कंपेलिंग रीजन अपने आप बन जाएगा, बड़ा मजा आता है। देन इट बिकम्स बोथ अ हॉबी एंड ए पैशन। सो वो एक अलग, उसमें फिर आप अलग अलग चीज़ों को अपना एक्सपेरिमेंट करें। सो स्टार्ट विथ इजी थिंग्स। अब किस किस्म की प्रॉब्लम है, उसको कैसे ओवरकम किया, अनलेस वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक about them specifically, I won't know how to answer this question. But yes, I don't think you ever resolve your, जैसे जो ब्रेन वॉश लोग होते हैं, चाहे कुछ भी करने, वो जो आपके बचपन में आपको जो चोटें लगी थी वो बार बार वापस आती हैं। शत्रु प्ले पूरा ही इस बारे में है। तो यू विल कीप रिएक्टिंग आउट ऑफ द सेम hurt feelings or same brutal feelings forever, which will give you problems as you start think rationally about it. तो ये तो भैया अपने आप को फेस करने वाली बातें हैं, अपने आप मुझे नहीं मालूम। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू आंसर इट फर्दर। ओके सर, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल स्मृति का है। She's asking, sir, could you please suggest some plays for those who are beginners, plays that we can read or rewrite? अच्छा देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो मैं जो पिछले हमारे 2 स्पीकर्स थे, उनमें से किसी से पूछ लीजिए, वो लोग आपको बहुत अच्छी बातें बताएंगे, आलोचना के साथ बताएंगे। मुझे तो मेरा जिस पर हाथ पड़ता है वो मैं पढ़ लेता हूँ, और पढ़ लेता था ज़्यादा है। आजकल क्या हो गया, बहुत दिनों से हो गया, बहुत गलत हो गया है कि मैं नाटक इतना पढ़ता हूँ, कहानी इतनी पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी कहानी बना लेता हूँ, और मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ या नहीं ये भी अपना डिसाइड कर लेता हूँ। तो एक सर्टन डिग्री ऑफ इम्पेशंस है, जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो नहीं। लेकिन देखिए जो क्लासिक्स हैं वो कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ तो है कि वो इतने सालों जिंदा हैं, कुछ ना कुछ तो है ज़रूर उनमें। तो whenever in doubt, please pick up a famous play and see why is it famous. Just have one question. तो इस तरह से जो है ना, कम से कम
आपका जो अपना पढ़ने का मटेरियल आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। आई विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू कि ये वाला प्लेस किसका, क्यों अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू। मैंने आपको कुछ ऑथर सजेस्ट किए स्टोरी राइटर्स के, वो अगर आप पढ़ें स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह, तो वो एक अपने आप में बहुत आपके आपके ड्रामेटिक योर लाइफ एज ए राइटर शुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और अगर आप प्लेज ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप उनके क्राफ्ट में ज़्यादा पढ़ जाएंगे फिलहाल, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको अपना पहले आर्ट डेवलप करना चाहिए, क्राफ्ट अपने आप आता रहेगा। जी, आई होप स्मृति ने ये नोट्स लिखी हैं। नेक्स्ट सवाल सर है वैभव मिर्जा का। ये पूछ रहे हैं कि आपके कई नाटकों का मंचन भारत के कई थिएटर ग्रुप्स कर चुके हैं। ऐसे में किसी ग्रुप का मंचन ऐसा रहा है जिसको देखकर आपको लगा हो ये मेरे लेखन के मर्म तक पहुंच पाए हैं, और ये कब और कैसे होता है कि जब नाटक का मंचन लेखक के लिए सार्थक हो जाता हो। देखिए, अब मैं एक नाटक के बारे में बात करूँगा, ये मैं इस सवाल का जवाब मैं आपको ख़ास देना नहीं चाहता, ठीक है। अब लेकिन एक आध एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है, एक मामूली आदमी जो है वो रंजीत कपूर साहब ने किया था, और मेरे जितने भी नाटक में सबसे फेमस एक आदमी ने जो नाटक किया उसमें उसका नाम है रंजीत कपूर। बड़े आदमी, बहुत अच्छे, उनका मैं बहुत दोस्त भी हूँ और उनका बहुत बड़ा एडमायरर भी हूँ। तो उन्होंने मेरा जब प्ले चूज़ किया और उस पर उसका प्रोसेस शुरू किया, तो बड़ी बड़ी बातें होंगी। मैंने आपको बताया कि किस तरह से मेरे जो टेक्स्ट था उसमें फ़र्क आए वगैरह वगैरह, और वो किस तरह से अपने कैरेक्टर्स को मैं जाता था उनके उसमें। अब मैं आपको एक असली बात बताता हूँ, कब वो अपने एक्टर से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं वो मेरे को कम्युनिकेट होता ही नहीं था, क्योंकि मैं अगर ये बात उस एक्टर को समझाता तो कैसे समझाता था, ये मेरे दिमाग में बहुत सारा था। तो मैं इस कदर डिससेटिस्फाइड था रंजीत कपूर साहब से। और इन एनी केस, जो भी रंजीत कपूर साहब को जानते हैं, वो बहुत कैजुअल लगता है कि मैं कल से रिहर्सल शुरू कर दूंगा 10 बजे से, और फिर ये वाली बात 10 दिन बाद भी होगी। और मतलब इन द सेंस दैट इट इज सो सीम्स सो डिसऑर्गेनाइज्ड एंड दिस थिंग। तो मेरा भैया इतना प्रेस्टिजियस प्ले चल रहा था, तो मेरा तो बड़ा खून उबल रहा था कि मेरा नाटक का कोई शेप ही नहीं निकल के आ रहा। अब जब नाटक शुरू हुआ, पहला शो उसका, तो आई वाज इन दैट स्टेट कि मैं आई वाज बॉइलिंग। और उन्होंने कहा था, आप बेफिक्र रहिए अशोक साहब, मैं जो हूँ 4:30 बजे 4.5 घंटे पे 2 बजे पहुंच जाऊंगा, लाइटिंग वाइटिंग में सबकी एंट्रीज एग्जिट वगैरह तय हो जाएंगे, ठीक है। वो 5:30 तक नहीं आए, और 5:30 के पहले तक वो एक छोटा सा हिस्सा था रिकॉर्डिंग का, वो रिकॉर्डिंग करवा रहे थे, उसको वो लेके आए। काम कर रहे थे प्ले पे, लेकिन जहाँ करना चाहिए था वहाँ नहीं कर रहे थे, और जो पहले कर लेना चाहिए था। अब वो 5:30 बजे आया, उसके बाद प्रेस वाले आए हुए थे, उसके बाद उनके वो जो तस्वीरों वाला सेशन शुरू हो गया, तो कोई हुआ ही नहीं, मेरी राय में एक भी रिहर्सल नहीं हुआ, और वो चले गए फिर लाइटिंग रूम में और नाटक शुरू हो गया। तो मेरा स्टेट ऐसा था कि मेरे एक दोस्त जो मेरे पास बैठे थे, जिनको ये सब चीज़ों का ज्ञान था, वो मेरा हाथ पकड़े बैठे रहे, क्योंकि मुझे तो आई वाज बॉइलिंग विद हिम। अब वो प्ले ऐसा था, इतने सारे लोग देख रहे थे कि पूरा श्री राम सेंटर में, मतलब एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर सब, इस इतना भरा हुआ हॉल था। इतना भरा हुआ हॉल मैंने कभी देखा नहीं इसके पहले या बाद। तो ऐसे चल रहा नाटक, और पिन ड्रॉप साइलेंस पूरा नाटक उन्होंने बगैर इंटरवल के किया, और इतनी जोर से ताली बजी। तो जब मैं ट्रांस से वापस आया, तो माय फ्रेंड टोल्ड मी, लुक हाउ सक्सेसफुल इट इज, क्योंकि मेरा तो अभी वो चल रहा है कि देखो कितनी खराब। अब मुझे नाउ लुकिंग बैक, दैट वाज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग
वर्जन ऑफ माई प्ले। इसी तरह एक हमारे यंग आदमी हैं जिनको बहुत मुश्किल प्ले हमारा शत्रु दी एनिमी विद इन, जिसका नाम है अजात शत्रु की ज़िंदगी पे। वो एक यंग डायरेक्टर, इनका नाम है सुनील रावत। उन्होंने अपने ग्रुप के संग किया था। उन्होंने इतने एनर्जेटिकली किया, उसमें कदर अच्छा लाइट्स का इस्तेमाल किया कि मैंने भी किया हुआ है वो नाटक, बट आई कुड नॉट क्रिएट सो मच ड्रामा विद इन इट बिकॉज इट इज बड़ा स्टैटिक सा है कई जगह वो, लेकिन ही डिड, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। बाकी में मेरा सवाल का जवाब खत्म। जी सर, दैट वाज सो इंसाइटफुल। सर नेक्स्ट सवाल जो है वो आस्था का है। शी इज आस्किंग, व्हेनेवर आई राइट अ प्ले और अ स्टोरी आई स्ट्रगल टू ऐड राइट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज और सस्पेंस, बेसिकली आई गेस some conflict in it to make it more interesting and keep the readers intact to the story. So what to do? यू हैव टू से इट अगेन, मुझे कोई काफ़ी मुश्किल सवाल लग रहा है, इसलिए मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। Whenever I write a play or a story, I struggle to add right amount of complexities or suspense in it to make it more interesting and keep the readers intact to the story. What should I do? Yeah, the most important thing of any this thing is its complexity, not complicated, नहीं, complexity जो तय हैं, परतें हैं, तो प्लीज मेक इट एज कॉम्प्लेक्स एज यू कैन, ताकि आपको अपने आप भी उससे निकलने में मुश्किल हो कि मैं कैसे रिजॉल्व करूं इसे। तब आपका जो प्ले बनेगा वो वाकई इट विल बिकम अ रियल एक्सपीरियंस फॉर पीपल। So please make your conflict even more conflicting, even more difficult, more complex. So it will be better for your work. और Thank you, sir. कॉमेडीज में इसका बड़ा मजा आता है। कॉमेडीज में आप जिस किस्म की चीजें उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ना, कि हर चीज में एक आपने वो गया, सब कुछ ठीक चला, एक कॉम्प्लिकेशन और हो गया, उसका एक Hmm. अलग ही मजा है। तो कभी भी रिजॉल्व मत कीजिए आसानी से, नहीं तो नाटक क्या करेंगे आप। जी, कहीं ना कहीं काफी लेयर जोड़ देती है कहानी को। So next sir question है कशिश चुप का। He's asking that first of all he's thanking you. The session was actually insightful, so thank you so much sir as well as Samar. So wanted to ask that usually we can't complete the writing in one go, and while you sit to write one day on one day you are in some other mood or atmosphere, and the other day you might be in a whole different atmosphere. So this creates a personal bias. So how to cope with it? देखिए, अगर आपके पास इतना कुछ कहने के लिए है कि आप उसे एक ही सिटिंग में कह सकते हैं, तो ऑब्वियसली यू आर वेरी चार्ज्ड, तो ज़रूर लिखिए। उसके बाद भूल जाइए। प्लीज़ विजिट द सेम प्ले अगेन, a week later, 5 days later, 6 days later, and yet again. तो आपको अपना प्ले में वो बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि आप उसमें से हटाना चाहेंगे या ऐड करना चाहेंगे, या अपना कैरेक्टर जो आपका बड़े आसानी से यहाँ पे जाके उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, उसको एक और प्रॉब्लम, और आप सड़क चलते हुए, क्या होता है कि सब्जेक्ट जो आपका प्ले का होता है वो एक बड़ा मैग्नेट होता है। अगर आपके दिमाग में एक सब्जेक्ट है तो आप जैसे ही घूमने जा रहे हैं या किसी को देख रहे हैं, आपके सब्जेक्ट से मिलती जुलती चीजें लगेंगी सारी आपको। सो द अमाउंट ऑफ इफ यू हैव अ सब्जेक्ट इन योर माइंड, the whole world is conspiring you to make your play richer, क्योंकि somehow वो सारी बातें आपको अपने प्ले से जुड़ी हुई लगने लगती हैं। तो प्लीज राइट इट इन वन गो, बट कीप दैट आइडिया। आप ये पाएंगे कि आप दुकान पे जाएंगे तो आपको एक नया आइडिया मिलेगा। वो सब्जेक्ट क्योंकि आपका तो चुंबक बना हुआ है, ये भी इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं अपने प्ले में, या कर सकती हूँ वगैरह। सो अगर आपका इतना लिखने को है और आपके पास इतना टाइम है, प्लीज लिखिए एक दफे में, लेकिन उसको फाइनलाइज मत कीजिए एक दफे में। Sir, next question, I guess एक actor का है. The name is Fasil. He's asking, sir, as we
belong to a medium which is an amalgamation of writers, directors, and actors, and other technical areas as well. But being an actor, my question is while we are working on a story, irrespective of the medium, how important is it for an actor, director, and writer to be on the same page? If they're different people, should an actor try marrying the mind of the director or the writer more? कल जो पवन बोल रहे थे उनका थोड़ा मैंने सुना था, तो उन्होंने कहा आपको कैरेक्टर को अपनाने वाली बात उन्होंने कही थी। जब मैं कैरेक्टर को अपना रहा हूँ तो ना कोई राइटर है ना कोई डायरेक्टर है, तो वो मेरी एक अपनी जर्नी है। मैं एज एन एक्टर आपको ज़्यादा बता नहीं सकता क्योंकि मैं दूसरी साइड पे हूँ इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, बट आई वुड लाइक, मैंने आपको बताया कि व्हेन आई डायरेक्ट आई वांट टू डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम द राइटर इवन इफ आई हैव रिटन द प्ले। वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एक्टर के लिए डायरेक्टर ने जो कहा है और लेखक ने जो लिखा है, लेकिन अब उसको अपने तरीके से कि क्यों मुझसे यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, क्यों मैं किस तरह की आवाज़ में कह रहा हूँ, किस तरह के मूड में कह रहा हूँ, वो उसका इंटरनलाइज प्रोसेस है जिसमें अब बियॉन्ड अ पॉइंट देयर इज नो डायरेक्टर एंड नो राइटर। A similar question was asked by Farhana. I hope he has got the answer. If not, just do let me know in the chat box. The next question is from Sir Arun Singh. He's saying कि अगर नाटक कोई शुरू किया है और शुरू में लगा कि सही डायरेक्शन में जा रहा है, but then it got stuck और सोचा थोड़ा और एक्सपीरियंस चाहिए। अब जब कुछ दिनों बाद वापस लौटता हूँ नाटक पर, तब भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जो लिख रहा था, that is not going in the right direction. So what to do with them unfinished stories or plays? या लेट्स मीट, मेरे संग ये बहुत प्रॉब्लम चल रही है आजकल। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ों का मैं एंड बदलना चाह रहा हूँ और या एंड नया लिखना चाह रहा हूँ। देखिए, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट ए फ्रेश। जो आपने सीन लिखा है, पिछला सीन लिखा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, उससे एक आध सीन पहले जाइए और उसको जहाँ जा रहा है आपका कैरेक्टर, जा रहा है इसका मतलब नॉट फिजिकली, जिस डायरेक्शन में भी चला है वो, उसको थोड़ा सा बदल के देखिए और सोचिए अगर ऐसा होता तो क्या। मैंने कहा था शुरू में कि हम फिल्मों में तो शायद व्हाट इफ एक ही दफ़ा पूछते हैं, शायद नाटक लिखते वक्त व्हाट इफ आप पूछते रहिए तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन ये आसान पता ही नहीं। लेकिन अगर जब उसको जवाब मिलेगा तो जो एक्सटेसी होगी ना इसकी, उसका भी जवाब नहीं है। बिल्कुल। So I guess this is the part and parcel of writing. Okay. So sir, next question है again I guess Arun का। सर आपके नाटक एक मामूली आदमी में हर किरदार की एक पहचान है, मतलब कोई भी किरदार ऐसा नहीं है कि वो जरूरी ना हो, तो भले ही वो चपरासी क्यों ना हो, उसकी भी एक आइडेंटिटी है। तो अपने लिखे में कई बार ऐसा होता है कि कुछ किरदार आते हैं पर वो उतने ऑथेंटिक नहीं लगते और कभी कभी बेवजह जान पड़ते हैं, लेकिन उनको हटाने से नुकसान भी होता हुआ दिखता है। तो हर किरदार को जरूरी बनाना कितना जरूरी है और क्या ये पॉसिबल है जैसा कि आपके नाटक में दिखा? ये दिस इज ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और ये मैंने सीखा मैंने, ये वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई लर्नड अबाउट राइटिंग वाज दिस कि मेरा एक मेन कैरेक्टर, उसको पूरा प्ले अवेलेबल है अपना कैरेक्टर अनफोल्ड करने के लिए, लेकिन वो आदमी जो इतनी सी देर के लिए आया है उसको अपना पूरा ग्राफ इतने में बनाना है। तो मुझे उसमें तो लाइफ इन्वेस्ट कर दूंगा बाद में, मुझे जो दूसरा वाला कैरेक्टर है उसमें अपनी ज़्यादा लाइफ इन्वेस्ट करनी होगी, क्योंकि उसका एक्सपोजर और उसका इम्पैक्ट मैं बहुत छोटे टाइम में ले रहा हूँ। और एक भी और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि मैं क्यों कोई कैरेक्टर लाता हूँ, वो इसलिए कि इल्यूमिनेशन इफेक्ट, कि मेरा किरदार को मुझे ये बात दिखानी है
इसलिए मुझे इसका ये फैसेट दिखाने के लिए ये कैरेक्टर लाना पड़ेगा, इसका ये फैसेट दिखाने के लिए दूसरा कैरेक्टर लाना पड़ेगा, ये वाली सिचुएशन लानी पड़ेगी। तो एक्चुअली मेरा जो नाटक है या किसी का भी जो नाटक है वो बनता है इसकी मदद से कि जो स्मॉलर कैरेक्टर्स हैं वो ही आपका बड़े कैरेक्टर को इल्यूमिनेट कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए हर नाटक में, मतलब जो भी मैंने नाटक लिखे या नाटक में देखता हूँ या पढ़ता हूँ, उसमें जिनका छोटा रोल है, आई लव दम, they are extremely important, and please pay as much attention to them as is possible. सर आई गेस अरुण काफी खुश हैं उनके क्योंकि सवाल की काफी तारीफ, और इसी कड़ी में उन्होंने एक और सवाल पूछा है कि सर एज अ राइटर खुद की राइटिंग का किस हद तक क्रिटिकल होना सही है, क्योंकि जहाँ तक सीमित नॉलेज है कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, तो हर दिन कुछ पुरानी रचना अपने चमक खो देती। उसको क्रिटिसिज्म या सही या गलत या इस तरह के पैमाने पर ना देखें, अच्छा बुरा के पैमाने से नहीं, वो दूसरों का काम है, आपका काम नहीं है। उसको देखिए कि आपको कितना खुश करता है, क्या आप अपनी बात कह पाए, तो उसको चाहे आपको 10 दफ़े लिखना पड़े, 5 दफ़े लिखना पड़े, 25 दफ़े लिखना पड़े, वो एक आपका अलग प्रोसेस है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सेल्फ मतलब थिंकिंग अबाउट इट अगेन शुड बी लुक्ड एट एज अ क्रिटिसिज्म। गलत या सही, अच्छा है बुरा मत देखिए प्लीज। सर एज एन लाइक मैं भी कभी कभार देखता हूँ तो मुझे जैसे पढ़ने का अभी हाल ही में शौक पड़ा है, ये सवाल मेरी तरफ से है। तो आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में, सर ये सवाल मेरी तरफ से है, आजकल की सोशल मीडिया में के जमाने में जहाँ शायद अंकित हर कोई खबरदार जो मुश्किल सवाल पूछा। हाँ चलिए। सर ऐसी हिमाकत हम नहीं कर पाएंगे। सर आजकल के सोशल मीडिया के जमाने पर जहाँ शायद हर कोई लेखक हो चुका है, और जिस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लिखा भी जाता है, जो एक अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कम पढ़ा जा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, आप कैसे यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया को, उससे क्या असर ले रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल फेसबुक एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, वो इसलिए है कि मुझे उसमें से जो नहीं पढ़ना है, जिसके व्यूज़ में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ता। वो साफ साफ शुरू में ही पता चल जाता है कि इसके व्यू में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इस तरह की हेडलाइन में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इस तरह की चीप बातों में या बातें जो जिस तरह की में ये मेरे इंटरेस्ट की हैं नहीं। ये शायरी कर रहा है, मुझे इस शायरी में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने जो मैं देख रहा हूँ उसमें से बहुत कुछ निकाल दिया। लेकिन अगर मैंने अपने दोस्त सही बनाए हैं जो कि मेरे संग एक आर्टिकल शेयर कर रहे हैं, जो अपनी एक वो थॉट शेयर कर रहे हैं जिसके ऊपर मुझे एक अपनी थॉट का मौका मिलता है, सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। इट इज नॉट मतलब उस पर ये मैं नहीं कह रहा कि किताब पढ़ना छोड़ दिए, नो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप भूल जाइए उस सबको, वो तो करिए प्लीज। लेकिन इसको ये ना नेगेटिव, इसकी नेगेटिविटीज के बारे में मैं आई एम नॉट सो कन्विंस्ड। Thanks a lot, sir. That was such an amazing time to have you with us. Now, I would like to invite our director and founder of the group, Mr. Sandeep Rawat, to give the vote of thanks. Can we have Sandeep sir on the ये क्या क्या रूप लगाते हैं आप संदीप जी, मैं आपको पहचानूंगा नहीं अगर आप मुझे कहीं मिल रहे। सर इस लॉकडाउन में हम सब लोगों ने क्या किया है, या तो हमने वजन बढ़ाया है या दाढ़ी बढ़ाई है या नॉलेज बढ़ाया है, तो हम लोग शायद सब में शामिल होना चाह रहे हैं कि नॉलेज भी बढ़ा है। मैंने घटाए हैं बाल। सर थैंक यू सो मच समय देने के लिए। मेरे लिए बड़ा मजेदार था आपको सुनना, और शायद मैं भी पहली बार आपको इस तरह सुन रहा हूँ, तो एक स्टूडेंट की तरह बहुत मजा आया। और वो जिंदा दिली दिखती है, मैं कहूँगा कि वो शायद आपके नाटकों में भी दिखता है, जो जिंदा दिली आप में है। और मुझे लगता है जितने आज सभी लोग जो आपको सुन रहे थे वो शायद
महसूस कर पा रहे हो कर पा रहे होंगे कि कितनी खूबसूरती से आप अपनी बात रख रहे थे। शायद किसी को आपका बोलने का ढंग, किसी को शायद आपके बोलने की अदा, किसी को शायद आपका शब्दकोश, है ना, और शायद किसी को आपकी आवाज। तो सर हम चाहते हैं कि आप एक्टिंग किए करें, हम चाहेंगे। यार मुझे मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान ना करो। मुझे बड़ा मुग़ालता है कि मैं बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं बड़ी अच्छी आवाज़ है मेरी, मैं सिंगर भी बहुत अच्छा हूँ, मैं शायर भी बहुत अच्छा हूँ। अब छड़ यार। तो लेखनी के बारे में जब हम इस वेबिनार को प्लान कर रहे थे तो आमतौर पे कहा जाता है कि एक एक्टर के लिए लेखन जानना कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है। क्योंकि कई बार अभिनेता को लग सकता है कि मुझे तो परफॉर्म करना है, मेरे लिए लेखनी की बारीकियों को जानना जरूरी है या नहीं है। जो मैं हमेशा कहने की कोशिश करता हूँ कि आप अगर आप एक अभिनेता के तौर पर अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं लिखा तो भी आपने कम से कम कैरेक्टर स्केच जरूर लिखा होगा या अपने कैरेक्टर की डिटेल जरूर लिखी होगी। तो मुझे लगता है कि एक अभिनेता के तौर पर जरूरी है लेखनी की बारीकियों को समझना, सुनना, समझना कैसे चीजें होती हैं। जैसे सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए कि किस तरह से हम किरदार को समझने में, अगर हमें एक लिखने का तरीका, एक लिखने के पीछे की सोच कि एक पेड़ पर, सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक पेड़ पर मुझे सिर्फ खूबसूरती दिख रही है लेकिन उस पेड़ पर मुझे कितनी डिटेलिंग और दिख सकती है। तो मुझे लगता है कि ये एक लेखक की जिम्मेदारी होती है और हम सब जो ये सब बडिंग एक्टर्स हैं, जो बडिंग राइटर्स हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। अपने अपने वक्तव्य को खत्म करने से पहले कुछ वोट ऑफ थैंक्स देना चाहूंगा। सबसे पहले तो अशोक सर, आपके लिए आपने समय निकाला और मुझे याद है आपकी आवाज शायद 2019 में मैंने सबसे पहले सुनी थी। आपकी किताब के पीछे आपका एड्रेस और फोन नंबर था। मैंने कॉल किया, सर ऐसे ऐसे आपके नाटक को हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो कुछ तकनीकी सवाल के बाद सर ने बड़े ही वार्मली वेलकम किया कि हाँ करो। और फिर लेटर ऑन पता चला कि मेरे गुरु डॉक्टर आशीष घोष के मित्र हैं अशोक सर। तो मेरे लिए सर को ब्लैकमेल करना और आसान हो गया, सर आपको नाटक देखने आना होगा। क्योंकि बाद में जब पता चला मेरे गुरु और अशोक सर बहुत अच्छे मित्र थे तो मेरे लिए बड़ा वो हो गया कि मैं अब ब्लैकमेल कर सकता हूँ सर को। और सर आए और वो नाटक बहुत खास नाटकों में रहा हम लोगों के। हम लोगों ने बहुत सीखा और शायद उस नाटक ने मेरी भी शायद वो मेरा वो दृष्टिकोण बदला कि एक 2 घंटे का नाटक इस तरह खेला जा सकता है। क्योंकि वो 2 घंटे हुआ, आमतौर पर मैं लंबे नाटकों से बचता हूँ, शायद हर निर्देशक अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन शायद उस नाटक को करने के बाद मेरा ये भ्रम भी टूटा कि नहीं, हम शायद हम इस तरह लंबे नाटक की तरफ बढ़ सकते हैं। और बहुत मजा आया सर सुनकर आपको। कुछ वोट ऑफ थैंक्स जरूर देना चाहूंगा। ये सर आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं समर्थ थिएटर ग्रुप का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतने यंगस्टर्स जिनको मैं नहीं देख रहा सबको, लेकिन एक फीलिंग है कि मैं यंगस्टर्स के बीच में हूँ, तो एक बड़ा अच्छी फीलिंग है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कुछ वोट ऑफ थैंक्स देना चाहूंगा जो इस पूरे वेबिनार को मैनेज करने में एक टीम लगी हुई है। तो सबसे पहले मैं अंकित को बुलाना चाहूंगा, हमारा होस्ट। अंकित, एक बार उन डिजिटल तालियों के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू, ध्रुवी, थैंक्स अ लॉट। ध्रुवी अगर यहाँ पर है, ध्रुवी, शायद ध्रुवी भी नहीं है। अंकित कुमार जो पूरा टेक्निकल पीछे से मैनेज करे, अंकित, सॉरी अरुण अरुण कुमार, करुआ। अरुण कुमार, अरुण। एंड स्पीति नहीं है, पर स्पीति ने बहुत कुछ पीछे से मैनेज किया है, तो स्पीति के लिए भी डिजिटल तालियां। और अंत में बस यही कहूंगा कि पढ़ते रहें आप सब लोग, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। सर ने बहुत अच्छे से चीजें बताई। सर का नाटक है जो हमें शायद पढ़ने जरूरी है। और शायद आपका नाटक एक मामूली आदमी के संदर्भ में, और इसी के साथ अपने वक्तव्य को अंत करूंगा, उन उन कालजयी नाटकों में से एक है जो पिछले 30 सालों से खेला जा रहा है। और मुझे लगता है शायद आने वाले 30 और 50 साल खेला जाएगा। क्योंकि आपने जैसे एक होमवर्क दिया था कि सभी को नाटक पढ़ना है, तो कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास आया भी कि सर ये नाटक अभी भी रेलिवेंट लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं शायद 2021 में इस नाटक को, कि 2021 में किसी ने इस नाटक को लिखा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो नाटक है वो कालजयी है, उनका कोई अंत नहीं है, वो किसी भी काल में खेले जाए वो हर रेलिवेंट लगेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर समर्थ को समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। एंड नाउ अंकित, आपकी तरफ बढ़ते हैं। आज की शाम को खत्म कीजिए अंकित। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।
जैसा कि मैं चैट्स में देख पा रहा हूँ, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू सर टू spare some time for such amateurs I will say। and आप मैं मुझे याद है कि मैंने भी 2019 में जब ये नाटक किया था, मैं सोच रहा हूँ ये बात बोल दूं इससे पहले हमारी दोबारा कभी गुफ्तगू हो या ना हो, तो वहाँ पे मैंने खरे का रोल निभाया था और उस दिन मेरी आपसे बात नहीं हो पाई थी, चाहे वो उस समय हाई हेलो होता, बट आज आपको आपने सुनकर क्या आपसे क्या बात। क्या रोल अंकित क्या रोल निभाया था? सर खरे। अच्छा, ओ यस, ओके, अच्छा, आई एम सॉरी, तो आई डिडंट रिकॉल। आपने भी कुछ इस दाढ़ी वाड़ी किसन कर लिया होगा, हाँ। जी सर। तो मैंने सोचा आज ये बात आपसे कह दूं और आज आपको सुनकर एक अभिनेता के लिए जिन्होंने जिसका नाटक उन्होंने खेला उनसे बात करके काफी अच्छा लगा। थैंक यू सर। मूविंग ऑन। ओके, जितने आई भी एम लीविंग, हाँ हाँ, जी यस सर। बाय बाय, श्योर सर, श्योर थैंक सर। यू। Moving on to all the participants who are with us, please like our Facebook page and follow us on Instagram to get further updates regarding workshops, webinars, and other seminars. I hope you enjoyed this session. So, bye bye. Goodbye.